Welcome back to another episode of Kya Kahega Kazi. My guest today was Kinjer Khoso. Kinjer is a real estate agent. She's also a public speaker. She's a motivational speaker. She's involved in multiple philanthropic projects. We get to speaking about the nuanced conversations around and in the Aurat March. Whether it's beneficial, whether it's detrimental to the cause of women, to the cause of empowerment. We get to speaking about societal change, how to garner it, about the industry of real estate and how we need more women in it, and overall about the philanthropic nature of Karachi and how if there's something wrong in the society, ultimately we are to blame. Enjoy. 3, 2, 1. Kinjer Khoso. How are you doing, Kinjer? I'm good. How are you? Alhamdulillah. I'm very glad I got that name right. Ye masla ho gaya tha. What's it? We were speaking about your work with the charity. Yeah. Let's start there, and then we can give an introduction first, or फिर गुफ्तगू जहाँ भी जाती है इंशाल्लाह. So what's the work, and what's it called, and then what do you work with? Well, I'm a marketing manager by ठीक है, profession, but ठीक है. we started this group, Help Us Help Karachi. It's a Facebook group. Last year, जब COVID की सारी situation थी, so me and my friends, we all started this group, and now alhamdulillah we have around, I guess, 29,000 members or something like that. That's sizable, mashallah. Yeah. So we started with ration drives. और तब हम लोगों ने कोई 5,000 6,000 लोगों को कोविड के टाइम पे लास्ट ईयर इन मार्च अप्रैल हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था एंड इट वाज ऑल फेसबुक लाइक नो पर्सनल. हमने स्टार्ट किया था कि विल डू दिस पर्सनली, बट व्हेन वी मेड दिस ग्रुप तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, सो दे ज्वाइंड इन और उन्होंने हमें डोनेशंस भेजी और सब कुछ. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड दिस ख्वाबों की परवाज़. इट्स अ प्रोजेक्ट दैट्स ये जो ट्रिब्यूट देता है जो प्लेन क्रैश हुआ था 22 मई Right. लास्ट ईयर. Right. सो मेरे बॉस भी थे उसमें. तो हम लोगों ने फिर उनके लिए ट्रिब्यूट किया एंड वी स्टार्टेड दिस स्टिचिंग प्रोजेक्ट. इट्स अ स्टिचिंग सेंटर Okay. सुल्तानाबाद में. Okay. तो जो भी वहाँ की औरतें ख़वातीन होती हैं हम उनको स्टिचिंग सिखाते हैं. Vocational training. Yeah, That's it's beautiful. kind of vocational training. So that's how we started this. And ख्वाबों की परवाज़ भी, क्योंकि जो परवाज़ पे लोग थे उनके ख्वाब अधूरे रह गए थे, तो ये उनको इनाम ही होता है. So उधर माशाल्लाह इट्स बीन लाइक आई थिंक 90 लड़कियां हैं जो वहाँ से पास आउट कर चुकी हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में, जिनको हम स्किल्स, बिकॉज आई बिलीव इन रादर देन गिविंग देम राशन या इस तरह से कुछ देना, इस तरह से आदी बनाना, आप उन्हें स्किल सिखा दो, खुद कमाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं. So it's a process also. Yes. So if they start earning तो उनके बच्चे भी देखेंगे कि औरतें भी कमा रही हैं, बाप भी कमा रहा है, तो फिर बच्चे भी सीखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हडरामी बहुत है. जी बिल्कुल. And also it kind of deters them from assimilating traditional gender roles. Yeah. कि नहीं भाई, ख़वातीन को भी काम करना होता है और वो कर सकती हैं, and इसमें कोई there's no real stigma around it. There's stigma around उनसे बदतमीजी करने में and उनको subjugate करने में stigma है. इस चीज़ में stigma नहीं होती कि if they pursue a profession because they need to. I really wish they didn't have to, but if they want to or need to, मतलब वो दोनों. Yeah, why not? But it's a skill. Yeah. प्रोफेशन और अर्न करने से पहले से स्किल तो आपके जितना ऐड हो, हाँ. तो आई थिंक वो उतना अच्छा है. हाँ. सो अगर, और ऑब्वियसली वो औरतें हैं, बच्चियां हैं, तो वो उनके अपने लिए भी बेहतर है. चलो इफ़ यू नॉट हेल्पिंग समवन एल्स, या आप लोग अर्न भी नहीं कर रहे हो, तो आप अपने लिए बेहतर अपने कपड़े बना लो. हाँ. अपना ही खर्चा बच जाएगा, बिकॉज आई नो कितना खर्चा होता है इसका. तो ये सारी चीज़ें भी बहुत होती हैं. फिर उसके बाद वी हैव दिस अपनी रोज़ी प्रोजेक्ट, जहाँ पर हम लोगों को कार्ट्स लगा के देते हैं, फ्रूट ठेले, इस तरह से. All of this is under the umbrella of Help Us Help Karachi. So it comes under ख्वाबों की परवाज़, और ख्वाबों की परवाज़ के अंदर ये प्रोजेक्ट्स आते हैं. Right, beautiful. So then रोटरी क्रीक ने मुझे डोनेट की थी मोबाइल लाइब्रेरी. ठीक है. So मोबाइल लाइब्रेरी इज लाइक एजुकेशन ऑन द व्हील्स. सही. So आगे बाइक है, पीछे पूरा एक बॉक्स है, एंड इट ओपन्स लाइक दिस. पूरी किताबें हैं, LCD लगी हुई है. तो वो हम लोग लेके जाते हैं जमजमा पार्क के पास और सारे स्ट्रीट चिल्ड्रन को बिठा के हम पढ़ाते हैं. Oh, that's beautiful. तो ये भी पिछले 3-4
महीनों से चल रहा है हाँ. DHA ने, और इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया था मेरा, तो वी स्टार्टेड दिस ऑल्सो. Right. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह. जो चल रहे होते हैं. That's very refreshing that you said कि उनने आपका साथ दिया है. I really was expecting आप बोले कि DHA वालों ने तंग किया जैसे वो करते हैं ना. नहीं, उन्होंने ऑनेस्टली बहुत साथ Yeah. दिया, बहुत ज़्यादा. बस ये होता है कि एक महीने की परमिशन देते हैं, जब एक्सपायर होने लगती है मैं उन्हें मैसेज छोड़ देती हूँ, सिर्फ मुझे रिन्यू करके दे देते हैं. तो बहुत ज़्यादा उन्होंने हम काफ़ी सारी लोकेशन मुझे दी हुई हैं. इट्स नॉट जस्ट वन लोकेशन. हिलाल पार्क, निशात पार्क और ये निसार शहीद पार्क, सॉरी, 2 तलवार, 3 तलवार, मैं जहाँ चाहूँ उसको ले जा सकती हूँ. Right. इवन DC साउथ ने भी बहुत हेल्प की थी क्योंकि 2 और 3 तलवार उनके अंडर आते हैं. Right. तो लेकिन मैं फ़िलहाल एक ही लोकेशन पे हूँ क्योंकि वहाँ स्ट्रीट चिल्ड्रन ये होता है कि रोज़ वेट करते हैं हमारा. Oh man. तो 10 Yeah. 15 बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाते हैं, मूवी दिखाते हैं सारा. तो ये भी एक प्रोजेक्ट है जो हमारा चल रहा है. फिर रमज़ान में हमारी रमज़ान ड्राइव होती है, विच इज़ राशन ड्राइव. ठीक है. एंड देन बड़ी ईद आती है तो फिर हम लोग जानवर की जो कुर्बानी ड्राइव होती है, गोश्त बांटते हैं. तो इस तरह के हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं. You started work at what age? 24, I think. Yeah, it's been 6 years. I started, 24. I'm 30 right now. अच्छा माशाल्लाह. So I wasn't asking. अल्लाह रहम करे ये नहीं. तो at 24, how did your first off, why did you get into work and how did your family react to you getting into work? Because यहाँ पे जैसा भी जिस भी आप सोशल सर्कल में हो, आखिर में यही बोला जाता है. अभी मेरे मुंह से यही बात निकली कि if you don't have to, then you know, क्या then ज़रूरत है? don't do it. मतलब क्योंकि because it's and I don't know. I hope it's not latent misogyny. I really hope it's not that. I just hope it's some misguided form of chivalry. कि नहीं, औरत को क्या जरूरत है काम करने की, मैं करके दूंगा. Right? I hope that I think that'd be better. So why did you start? Well, I did my BBA from Greenwich and Okay. उसके बाद से मैं मतलब एक आदत थी, एक रूटीन बनी हुई थी, तो मैं बैठ नहीं सकती फारिग. सही, fair. बिल्कुल भी नहीं. Okay, मतलब नॉट इवन रमज़ान. अगर No, मैं घर में बैठूंगी, जस्ट गिविंग एग्जांपल, अगर मैं घर में बैठूंगी मुझे रोज़ा लगेगा. How was the lockdown then? So that's why we started this Right, group. right, And मैं जाके राशन ड्राइव करती थी निकल के. Right. So इसी तरीके से फिर I joined this Clover School as admin assistant. टाइम पास की जॉब थी. मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि सुबह वहाँ जाऊँगी, दिन शाम में मेरा MBA हो जाएगा. फिर ये स्टार्ट करते करते पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैंने कहा कि नो, आई हैव टू बी वेरी सीरियस फॉर माई करियर नाउ. सो आई स्टार्टेड माई करियर. तो बेसिकली जो करियर स्टार्ट हुआ दैट वाज फ्रॉम स्कूल ऑफ लीडरशिप ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंट कंपनी. Okay. तो मैंने ट्रेनिंग्स मतलब तब मैं ऑर्गेनाइज करती थी ट्रेनर्स के लिए. ठीक है. और जब मैं सेल्स की पिच करती थी तो मुझे वहाँ पर कहा जाता था कि यू स्पीक रियली वेल, आपको ट्रेनिंग में आना चाहिए, यू शुड बी यू नो अ मोटिवेशनल स्पीकर. ठीक है. तो एंड आई वाज समवन जिसको स्टेज फ्राइट था. हाँ. मैं स्टेज पे जा ही नहीं सकती. That's very normal, yeah. या तो मतलब स्टेज छोड़े, लाइक ये जगह है ना, अगर मैं यहाँ खड़े होकर अनाउंसमेंट नहीं कर सकती 10 लोगों के बीच में या 5 लोगों के बीच में भी, ठीक है. तो मैं फ्रीज हो जाती थी. सो एक दिन जब मुझे ऑफ़र आई वुमेंस डे की, रिमेंबर वाज 2018 मार्च. Okay. तो मुझे जब ऑफ़र की तो मुझे कहा कि आप आएँ, आप जो है ना, क्योंकि मैं छोटी मोटी ऐसी वीडियोस बना के पोस्ट करती रहती थी. उन्होंने कहा आप आएँ, आपको ट्रेनिंग करानी है वुमेंस डे पे. आई वाज लाइक यार मैं और ट्रेनिंग पॉसिबल ही नहीं है. तो मैं गई पूरी रात पढ़ती गई मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या करना है, नोट्स बनाए, सही, सब कुछ किया. सही. अच्छा, अगले दिन ये हुआ कि 4-5 लोग ही आए थे, इतने ज़्यादा लोग नहीं आए थे. सो but it went really good. Alhamdulillah. जब when I spoke sorry. It's okay. It's okay. Yeah. That's fine. Yeah. So when I spoke तो बहुत दिल से चीज़ें निकली मेरे. जो मैं इर्द गिर्द ऑब्ज़र्व करती थी, क्योंकि आई एम अ वेरी गुड ऑब्ज़र्वर. मेरे सामने अगर 2 लोग बैठे होते हैं ना, तो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ दैट ही इज़ हैप्पी और ही इज़ नॉट हैप्पी, और वो क्या बात कर रहे हैं, क्या इनकी लाइफ में चल रहा है. एक अपनी तरफ से सोचती रहती हूँ. सही. तो जो मेरे दिल में आता गया, एंड इट वेंट रियली गुड. जो लोगों के कमेंट्स आते गए कि आप जब बोल रही हैं तो बड़ा हमें वो होता है, मोटिवेशन फील होती है. फिर इसी तरह से आई गॉट अ कॉल फ्रॉम खैरपुर. उसमें 200 लोग थे, 200 बच्चे. For Women's Day in particular. No, not Women's Day. It was just a conference. But then they wanted me to for like motivational as a motivational speaker, क्योंकि सिंधी बच्चे हैं तो उनको करियर का नहीं पता होता, फैमिली साथ नहीं देती, उनके बहुत इश्यूज थे. Right. इस तरीके से तो 200 बच्चे थे, पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल था, और मुझे वहाँ पर जाके पूरी जो है सेशन देना था, कोई 1-1.5 घंटे का. ठीक. जब मैंने वो दिया,
दैट वाज ओके. इस तरह से मैं लेती गई ट्रेनिंग्स. मैंने कहा फेल होंगी, जो होगा विल सी. Was it so देखो, एक तो फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग ये बड़ी एक नेचुरल चीज़ है, आपको डर लगना चाहिए स्पीकिंग ऑन स्टेज से ना. Yeah. बिकॉज हिस्टोरिकली क्या होता था कि आवर एंसेस्टर्स, जो जहाँ से हमारी फिजियोलॉजी की फिजियोलॉजिकल हेरिटेज है, दे वर ओनली एवर रिक्वायर्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड इफ देयर ट्राइब वाज गोइंग टू ऑस्ट्रेसाइज देम. तो अगर आप चले गए तो मौत है. Literally death, right? So if you can't convince them to not ostracize you, you're dead. तो वो वहाँ से आता है. But then also, खैरपुर में जो आपने दिया सेमिनार, was that in Urdu, Sindhi, English? What was that? It was both. It was Urdu and Sindhi. Urdu and Sindhi. Urdu and Sindhi. Yeah. Urdu and Sindhi, ना? तो was there a language thing where if you were required to speak in English, because your English is brilliant as well, alhamdulillah, was it that कि कोई एक language कमजोर है उसमें नहीं, it's not about the language. It's just that कि मुझे नहीं लगता था, मुझे उस टाइम समझ नहीं आता था, बिकॉज मैंने कभी प्रेजेंटेशंस भी नहीं दी यूनिवर्सिटी में. सही है. मैं क्या करती थी, जब से लास्ट रह जाती थी, हाँ. जब पूरी क्लास चली जाएगी, हाँ. मैं तब प्रेजेंट करूँगी. हाँ. और अगर कभी ऐसा हो कि पूरी क्लास बैठी है तो मैं रट्टा मार के जाती थी. हाँ. मुझसे नहीं होता था. बट यू नो, आई नेवर न्यू दैट मैं कर सकती हूँ. Right. मैंने कभी कोशिश ही नहीं की. जब Right. मुझे स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया ना, अच्छा खैरपुर वालों ने ये किया था कि मुझे बुलाया था, कहा था आप प्रेजेंट करेंगे, मुझे उन्होंने नंबर्स नहीं बताए थे कि 200 स्टूडेंट्स होंगे. Right. तो उन्होंने जब अगले दिन मुझे एक दिन मैंने अटेंड किया, उन्होंने कहा कल आपका सेशन है. आई वाज लाइक, मुझे आपने ये बात नहीं बताई थी. हाँ, कि इतने लोग होंगे. इतने लोग होंगे. Right. जो आया, जो बोला गया मुझसे, मैंने बस बोल दिया, बोल के ख़त्म कर बस दिया जो कुछ अच्छा, था. अच्छा हो गया. But then I got to know, I realized कि जो मैं पढ़ती हूँ, जो मैं सुनती हूँ, जो मेरी अपनी एबिलिटी है, इट्स जस्ट कि मैं जो लोगों में नोटिस करती हूँ, Yeah. वही मैं एग्जाम्पल्स बना के देती थी. एंड दैट्स व्हाट अ मोटिवेशनल स्पीकर इज. Yes. यू नो, sure. व्हाट यू आर गॉन थ्रू, हाँ. जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं. ऑब्वियसली बात है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. मैंने भी बहुत कुछ देखा है, सबने अल्लाह ने देखा हमको- होगा. हाँ, sure. तो यू नो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी. तो मैंने जब उन्हीं पे बातें करना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद पीपल. Sure. Sure. तो यू नो, मैं उनके साथ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इमोशनली, जब आप इस कॉम के साथ ना, बेवकूफ़ तो मैं एक अलग वर्ड है, लेकिन अगर बेवकूफ़ भी बनाना, आप किसी के साथ इमोशनली खेलते हो हमेशा. सही. तो मैं बेवकूफ़ तो नहीं बनाती. नहीं. बट इट्स जस्ट कि जब मैं उनको समझाना भी होता है ना, मैं इमोशनली कनेक्ट करती हूँ. Right. So a good friend of mine, Irfan Junejo, he's a huge he's a movement almost on YouTube and stuff. And then so I often think about what resonates about him, because a million followers on YouTube, it's a lot of people, na? Yeah. Constantly and resonating with him. And then this is what you're saying is exactly what the conclusion that I came to is, someone like me, when I put myself on YouTube, I'm very antagonistic. क्योंकि मैं बोलता हूँ यार आप ये गलत कर रहे हो, आप ये ना करो, ये करो. Irfan bhai, in contrast, what he does is he tells you a story. Yeah. So what he does is he bypasses the critical faculty. So it's not antagonistic. It's very like, आपको मैं कहानी it's बता रहा just हूँ. that हाँ. the people will connect Yes, themselves. the people Yeah. connect because it's a story. There's no antagonism. I'm telling you something about my life, and I'm telling you a story about Yeah. whatever. You take from it what you want. So I think there's a real art in connecting with people and having them be at ease. आपको जो है ना, you cannot like, if they become antagonistic, तो आप किसी को कुछ नहीं बता देखिए, सकोगे. किसी से बात करने के लिए ना, if you are here, obviously because मैं stage पे हूँ सही, and the sure. audience is here, Yes. you have to come here. Yes, there's to no other way. match the level, Yeah. right? There's just no other अगर way. मैं ऊपर रह के ही बात करूँगी, हाँ. तो वो मुझे उस तरीके से नहीं सुनेगा. वो मेरी हाँ में हाँ तो मिला देगा, but Sure. you know, he will not connect. No. Yeah? No. So मुझे उन्हीं के लेवल पे आके, because अब यूजली क्या होता है कि मेरा बैकग्राउंड भी, अगर मैं एक उस तरह से बैकग्राउंड से नहीं होता है, आई एम फ्रॉम अ लाइक बलोच फैमिली, तो मेरे यहाँ भी लड़कियाँ इतना नहीं पढ़ती थी या कुछ भी, तो वो चेंज होता गया ना. मैंने MBA किया, मतलब था कि नहीं मुझे करना है. अब की जनरेशन Was there a struggle for your MBA? या लाइक ऐसा होता था कि नहीं बस BBA कर लिया ना, बस ठीक है, MBA करने की ज़रूरत नहीं है. या मैं जो इतनी आउट गोइंग हो गई हूँ, लाइक सोशल वर्क और ये सब कुछ, ये नहीं होता था फैमिली, स्पेशली लड़कियाँ तो बिल्कुल भी नहीं करती थी. हाँ. तो मैंने किया. लाइक आई थिंक आई एम द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर जो ट्रेनिंग करवाती है या ट्रेनिंग्स पे जाती है, सब कुछ करती है. तो मेरे पे एक फर्स्ट वाला वर्ड लगता है. तो वो वाला, क्योंकि हम उन्हीं को समझाते हैं जिनके स्ट्रगल चल रहे हैं. तो जब हमने स्ट्रगल किया होगा तो वो समझेंगे कि यार उसने भी स्ट्रगल किया है, तो मैं भी तो एक स्ट्रगल से गुजर रहा हूँ. सो व्हाई कांट मी resonate. Yeah, you resonate. Yeah. सो दैट, तो इस तरह से उसके साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है आपको. Fair. You said
You said there was a little bit of a struggle for you to do your MBA and then your social work. Your family accepts it now, obviously. Yeah, हाँ because जब आप देखती है फैमिली, you know, she's doing good. हाँ People are saying good about her. हाँ. So, you know, in the end, they So how much of that then मुझे कभी कभी feel होता है with my own sisters or with my own loved ones or everyone, मुझे ये feel होता है कि a lot of it is apprehension. लोग क्या कहेंगे is a very serious problem हमारे माशरे में, especially for women, for men as well, but especially for women. yeah. A lot of that though is not कि I'm complying with, like a normal man or a normal person is complying with, even women are complying with लोग क्या कहेंगे. It's just apprehension. Yeah. कि यार आखिर में वही वाली बात है, ये इसी मुआशरे में रहना है इसको. Because again privilege, इंतहाई privilege की बात है ना कि मैं बोलूँ कि नहीं आपको तो बाहर चले जाना है. Yeah. बहुत सारे लोग बाहर नहीं, most of us can't leave. Most people will not be able to go abroad. They have to stay here, and if you have to stay here, you have to stay in accordance with the tenets of this muashra. नहीं तो TLP की रैली भी होगी, ये सारी चीजें हो सकती है ना. और आपको जो है नहीं तो कोई भी आप पे फतवा जारी करके आपको मतलब कुछ death threats, anything, everything is a fair game. तो a lot of this then, you think it's apprehension तो खैर है. How much of that do you think is misguided? How much of that do you think is कि नहीं थोड़ा कम भी कर लें तो ठीक है? ये apprehension जो डर है, खौफ है हमारे घर वालों का, how much of that is justified? Do you think? कम भी as in काम वगैरह या किस? नहीं. So जितना डर है उनको, जैसे अब आपके भी बड़े थे, अभी जो फैमिली ठीक है, हमें चेंज करना पड़ता है, you know. वो एक मेंटालिटी लेकर आ रहे हैं, उनकी मेंटालिटी अपनी जगह बिल्कुल सही है, बिकॉज यू नो दे हैव सीन थिंग्स, हमसे ज़्यादा देखा है उन्होंने. डरते भी हैं बहुत सारे. आई ड्राइव अलोन, मैं कभी नहीं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ. मैंने 2 बार ड्राइविंग सीखी थी, मुझे नहीं चलाने दी गई. तीसरी बार मैं जिद पे चलो अब तो आ गई है गाड़ी, अब क्या हो सकता है, यू नो. तो मैंने अपनी सेविंग करके खुद गाड़ी ली, अब तो कोई नहीं मना कर सकता. तो यू नो इस तरह से जब आप इस तरह की चीज़ें मैंने कंट्रोल लेना शुरू की. हाँ अब भी होता है, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, लोग बहुत नेगेटिव भी आपके लिए कहते हैं. तो नो आई वर्क विथ रियल स्टेट. सबसे बड़ी नेगेटिविटी तो ये है मेरी ज़िंदगी की कि you work with real estate. बिकॉज यहाँ की लड़कियाँ नहीं करती काम, और अगर करती भी हैं तो उनको गलत कहा जाता है, बिकॉज रियल स्टेट इज़ नॉट गुड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. सो यू नो गर्ल्स हु आर वर्किंग रियल स्टेट में वो कहते हैं यार तुम अपना करियर ख़राब कर रही हो. आज से 3 साल पहले मैं कहीं पे भी CV भेजती थी, वो कहते थे किंजर वाई रियल स्टेट, तुम तो कहीं पे भी जा सकती हो. सो द वर्क आई डू, यू नो माई सोशल वर्क, माई मोटिवेशनल ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, वो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ रियल स्टेट दे सकता है. तो मैं अपने सारे ड्रीम्स को नहीं चेज कर सकती, टाइम लगता है. एक 1 by 1 मैं एक साथ पूरे 10 चीज़ें नहीं हाथ में ले सकती. सो अब मैं रियल स्टेट में थी बिकॉज मुझे एक इनकम तो चाहिए थी काम करने के लिए, और यहाँ पर मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने थे. तो मेरे ड्रीम्स यही थे जो मैं कर रही हूँ साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी जो मैं फेस करती थी घर में. बहुत सारी बात होती थी कि वाई रियल स्टेट, इधर बहरिया टाउन के साथ काम ना करे, ये ना करे, वो ना करे, लोग क्या कहते हैं. बिकॉज प्रीडोमिनेंटली रियल एस्टेट में मर्द होते हैं, और मैंने सिर्फ मर्दों के बीच में काम किया. लाइक आई वाज द ओनली गर्ल. जो एक ऐसा वक्त भी आया था 6-8 महीने जो सिर्फ मर्द थे और मैं अकेली लड़की थी. पर आई थिंक इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो, आप उसको कैसे करते हो. मुझे नहीं लगता मेरे आगे कभी कोई गलत बात कर सकता है, एज लॉन्ग एज मैं ना चाहूँ तो. अल्लाह रहम करे किंजर, अल्लाह करे ऐसा ही हो. लेकिन बाज़ों का ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि माशाल्लाह से मर्दों की भी कैटेगरीज होती है ना, कुछ तो बाकायदा होता है. हाँ आई एम श्योर ऐसे होते हैं, ऐसे मैं नहीं कह रही कि केसेस नहीं होते हैं, बट देन अगेन हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा. यू नो लड़कियों का स्ट्रगल ज़्यादा है. तभी इतने सारे सेशंस वुमेन एम्पावरमेंट पे हो रहे होते हैं, औरत मार्च हो रहा होता है. लड़कियों का स्ट्रगल ज़्यादा है. लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं दुनिया को कि हम ये कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें लड़कियों को अनलर्न करवानी पड़ती है. Exactly. बेटा नहीं, आप कम नहीं हो, और आप मुश्किल हमें आती है. मुझे रियल एस्टेट में जब मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ मुझे बहुत मुश्किल आई. बट वही वाली बात है कि या तो आप उनकी नज़रों की वजह से अपने आप को, ऐसे तो नहीं आप ऐसे कोई कपड़े पहन रहे हो, लेकिन आप उनकी नज़रें नीचे करवाओ. यू नो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है. यार देखो ना, द इम्पेरेटिव वही वाली बात है ना. आप जब रिलीजियोसिटी को या किसी भी चीज़ को मोनोपोलाइज कर लेते हो ना, तो फिर इम्पेरेटिव तो दूसरे बंदे पे होता है ना. अब क्योंकि मैं
बिकॉज आई होल्ड द मोनोपोली ओवर रिलीजन, तो ज़ाहिर है आपके कपड़े ही बदलेंगे ना हाँ फिर मेरी नज़र टीचर नहीं हो सकती है ना. बट वी नीड टू रिमेंबर कि वो जो इम्पेरेटिव है वो अल्लाह मियाँ ने दिया है और वो हम सब के, मेरे ऊपर भी उतना ही जितना किसी और के ऊपर है. सो आई हैव टू लुक अवे. वो मेरा पर्दा है. इट्स सच अ मेस. इट रियली इज. मतलब मैं मर्दों की तो बात नहीं कर सकती, नहीं. ऑब्वियसली बात है, मर्दों की अपनी मर्जी है वो जो करें. मैं अपनी बात करूंगी Yeah. ऑब्वियसली, और मैं औरतों को ही कह सकती हूँ, Yeah. लड़कियों को ही कह सकती हूँ जो Yeah. जॉब करती हैं. या तो हाँ, उनके यहाँ शायद मेरे ऑफिस में इस तरह ना होता हो, आई एम लकी, उनके ऑफिस में होता भी होगा. बट मैं यही कहूँगी कि दैट वी ऑल नीड टू बी वेरी स्ट्रांग. Yes, औरतों इंशाल्लाह, का, लड़कियों का स्ट्रगल इज़ अ लॉट. ये बहुत है. यू नो, आपको दुनिया तो छोड़ें, पहले घर में समझाना पड़ता है चीज़ों को. आप पहले घर में समझाते हो कि नहीं, वी आर सेफ, हम काम कर सकते हैं, हम अपना ये ड्रीम भी पूरा Pursue कर सकते हैं, हम yeah. हर चीज़ कर सकते हैं. इंशाल्लाह. तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें. फिर आप बाहर निकलोगे घर से तो आप दुनिया को समझाओगे ना. Yes. जब आपका स्ट्रगल वहीं घर में ही ख़त्म हो जाएगा Yeah. तो आप बाहर नहीं समझा सकते. तो मुझे भी बहुत टाइम लगा था हाँ. ये चीज़ें करना. जब मैं लोगों के घरों में जाके राशन देती थी, खुद निकलती थी, 20-20 राशन रखती थी गाड़ी में और चक्कर लगाती थी, तो मेरे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट होता था कि सब घर में लॉकडाउन में बैठे हैं और ये लड़कियों के बाहर जा रही है. तो उनको ये नहीं दिखता था शायद कि मैं नेक काम कर रही हूँ, पर उन्हें ये दिखता था कि ये लड़कियों के बाहर जा It's रही है. literally, I mean, आप ऐसे सोचो कि what's better than that? तो उसका अब जो मैं कहती हूँ आउटकम आया है ना, वो 1 साल बाद आया है. अल्हम्दुलिल्लाह. जब मेरे माँ बाप को और मेरे उनको घर में आके लोगों ने बोला कि माय गॉड, कींजर्स डूइंग इतना अच्छा काम कर रही है आपकी बेटी, और आपकी बेटी ने तो ये किया है. हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए नहीं. नेकी का या नहीं, किसका, नहीं, लेकिन हाँ. लोगों ने जब आके ये बातें की तो मेरी फैमिली अब सही हो गई. यार देखो, अनफॉर्चुनेट सी बात है ना, फिर लोग क्या कहेंगे पे सही हुई है ना. लोगों ने कहा है हाँ. तो उन्होंने माना है. हम जब, लेकिन आपको एक चाहिए तो होता है ना, फीडबैक तो चाहिए होता है ना. Feedback सही. So then we could call it, like, we could give it a good name. We could call it proof of concept. We Yeah. could be like, यार it's a proof of concept. नहीं कोई सीन नहीं है. But yeah, I don't know. I just like that bothers me कि यार देखो, आपको असल में अनकंडीशनल रिगार्ड देनी है अपने बच्चे को. उनका बच्चा आप हो, लोग नहीं है. राइट. सो ये तो मेरे वही है ना कि हमें पेरेंट्स का भी वो हम लोगों ने बीच में शुरू किया था कि जो रिलेशनशिप होना चाहिए बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, कि आपको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से सारा डील करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए. कुछ फैमिली समझती हैं. हाउ वाज दैट सेशन दो जनरली? Were people open to it? Yeah, they were. मतलब मेरा वो FM पे था. हाँ. So FM पे क्वेश्चंस आते थे, तो उस टाइम तो ऑब्वियसली जिनकी भी आदतें, मतलब वो तो यही कहते थे कि नहीं आप सही कह रही हैं. पेरेंट्स और जो अभी जो गैप है बच्चों के बीच में, बिकॉज हम जो मेरी जनरेशन भी, आई थिंक हम भी सही थे. हमारे बाद वाले जो है ना, वो अचानक से एक बड़ा सा गैप आ गया. दिस सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मलाइज नहीं होती थी अब नॉर्मलाइज हो गई हैं. जैसे अचानक से लाइक मेरा किसी पे मॉर्निंग शो पे जाना बहुत बड़ी बात है, पर हम यूट्यूब चैनल पे बैठ के मॉर्निंग शोज कर सकते हैं. तो सुकून से वो बुरा नहीं मनाया जाता. बट एक टैबू है कि वो टीवी पे आ रही है, बट यूट्यूब आपके फ़ोन पे आ रहा है. तो बहुत ईजी है. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कंफ्यूज हैं खुद भी. तो इफ़ आई एम कमिंग ऑन अ मॉर्निंग शो और सुबह बैठ के पूरा घर बैठ के मुझे टीवी पे देख रहा है, तो वो बुरी बात है, आपकी बेटी टीवी पे आ रही है. बट हम वही मॉर्निंग शो अगर यूट्यूब चैनल पे चला रहे हैं तो दैट्स ओके. It's very interesting, but what you're saying, obviously, what you're highlighting, but what's also beautiful is how you've said कि we're confused. None of it is good or bad. The morning show wasn't good or bad. We're confused. No, we are confused. हमें नहीं पता कि हमें क्या फॉलो करना है. हमें जो लग रहा है सोशल मीडिया पे, अगर वी आर पोस्टिंग, हम तस्वीरें भी लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, इट्स नॉर्मल. लेकिन अगर वही तस्वीरें हमारी टीवी पे आ रही हैं तो ये बहुत बुरी. आपकी बेटी तो टीवी पे आती है. So is it because there's a certain kind of formality to TV, a certain kind of legitimacy to TV? Is it that? It's just कि मीडिया ख़राब है. और सोशल मीडिया खराब नहीं है. उसमें सोशल लग गया ना. उसमें सोशल लग गया. सही है. तो मीडिया खराब है. शुरू से हमने ये सुना, नहीं मीडिया में तो नहीं, मीडिया के तो लोग बड़े खराब होते हैं, बट सोशल मीडिया में भी आपको 600 लाइक्स तो मिल रहे हैं ना, 600 लोग भी देख रहे हैं. तो हमें खुद ही नहीं पता. जब हमने ये चीज़ एक्सेप्ट की है तो हम उसको भी एक्सेप्ट कर लें कि उधर भी वही हो रहा है जो उधर हो रहा है. सही. तो चीज़ें बड़ी होती तो जा रही है, नॉर्मलाइज बहुत ईजी होती जा रही है, लेकिन डिफिकल्ट भी उतनी हो रही है. They're getting more and more confusing, obviously. Yeah. So our generation, yours and mine, is the millennials, and ये मैंने इतनी बार बात की है, खैर मैं एक और बार कर दूंगा.
us versus or us in comparison to Gen Z जो हमारे बाद आई है, Yeah. एक जो वाज़े फ़र्क मुझे नज़र आता है वो ये है कि we are so concerned, we're so not burdened is a negative word, negative connotation, but we are so mindful at least and taught to be mindful of parental messages and societal imperatives. Yeah. नहीं, इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है. जो लोग क्या कहेंगे इसके बगैर एक्चुअली हमारा गुजारा नहीं है. आप यकीन मानो, आप जो भी बोल लो, कोई कुछ भी बोल ले, हम ज़्यादातर वो चीज़ें करते हैं जो मतलब हाँ बाबा अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा हूँ, मम्मी अब सही है. कंपटीशन भी तो बहुत है ना. बट कंपेयर टू द जेन जी, उनसे आप कभी बात करो ना, वेरी अनअपोलोजेटिक. Yeah. दे लाइक भाई मैं तो यही हूँ. मैं तो ऐसा ही हूँ. इस हद तक हो जाता है कि हमें लगता है कि यार आप बदतमीज हो रहे हो. वो शायद बदतमीज हो भी रहे होते हैं, राइट? आई एम नॉट सेइंग बदतमीज नहीं हो रहे होते, दे नॉट सेइंग दैट बियॉन्ड इट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि there's something there because आप देखो they're much faster than us. Yeah. Not just because of the social medias, but because in their biological hardware. बिकॉज उनके टाइम पे टेक्नोलॉजीज भी ज़्यादा है ना. हमारे टाइम पे भी थी, बट हाँ, मैं 9th में थी तो मोबाइल आया था. सही. ठीक है, बट सही. मोबाइल वाज विदाउट कैमरा. वो छोटा 11-10 तब आया, तब मैंने यूज़ करना शुरू किया था. मैंने वाज इन 9th grade. Well, the first mobile I got was an X600 Samsung का. उसमें Okay. कैमरा था. अच्छा, उसमें था. याद- मैं वो 1100 वाला जो नहीं होता था हाँ. नोकिया का, हाँ. वो यूज़ किया था. क्या बात है. तो फिर उसके बाद सोनी रिक्सन आए, ये हाँ. सारा कुछ आया. हाँ. फिर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तब MMS का टाइम था, बहुत सारी चीज़ें MMS का time था. यू नो बहुत Yeah. सारी चीज़ें डिफरेंट थी. अब ऑब्वियसली बहुत चीज़ें फास्ट होती जा रही हैं. Yes, हमें yes, नॉलेज इतनी जो अब मिलती है, Yeah. पहले तो हमें अखबारें खोलनी पड़ती थी ना, जी, किताबें जी, खोलनी जी, पड़ती जी, थी. अब yeah. तो आप सुबह उठ के फेसबुक खोलो, आपको सारी खबर मिल जाएगी. सारी खबर भी, and I think the technologies are so powerful that there's people that are sitting down and editing entire videos on their phones. कोई इशू ही Yeah. नहीं है, कुछ भी That's नहीं. why I'm saying कि ना अब तो मीडिया पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. हमने हाँ. YouTube चैनल्स बना लिए हैं. Yeah. हमने अपने ही सारे ट्रेनिंग्स बना के हम पोस्ट कर देते हैं. मैंने बीच में चैनल स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने मुझे हायर किया हुआ था ट्रेनिंग्स के लिए, तो मुझे टॉपिक्स दे देते थे. मैं अपनी वीडियो बना के रूम से बैठ के भेज देती थी. Yeah. जो ना एडिटिंग करके हर चीज़ करके बस गए वो. तो अब मेरा मैसेज तो पहुंच गया. Yeah. यू नो, स्पेशली इतनी ख्वारी करके कुछ करके हमें नहीं जाना पड़ता. I think you're right. I think एक हद तक तो मीडिया वाले लोग बहुत अच्छे थे शुरू में, right? But then after a while they started becoming complacent because monopoly तो कहीं पे हाँ, बुरी कहीं- होती है ना. हाँ. तो after a while they started moving away from a meritocracy. फिर वो जो उनको अच्छा लगता था, जो उनसे तमीज से या सलीके से बात करे, बाकी बातें आप हाँ. समझ जाओ, वो जो है वो उनको प्रेफर करते थे versus someone who was just meritorious, someone who Yeah. just had the merit. तो अब ज़ाहिर है because of the social media technologies ये तो ज़रूर है कि अब अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है, खुद सुना दो. वही वाली बात है ना. आप अभी जो ये सारा हुआ, तो मैं कल पढ़ रही थी, इट्स शफकत महमूद, राइट, जो एजुकेशन का भी चल Sure, रहा है yeah, बच्चों yeah, का. yeah, yeah. सो आई थिंक उसने अनाउंस किया था, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि बच्चे मुझे गालियाँ दे रहे हैं फेसबुक पे. सो मैं पढ़ रही थी ना, आई फॉरगॉट टू शेयर या सेव करना. वो मैं सुबह जब मैं नींद में थी तो यू Yeah, नो yeah, yeah. मैं स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो उसकी न्यूज़ आई हुई थी, और नीचे मैंने जो कमेंट्स पढ़े, दैट वाज आवर यूथ. Yeah. मेरे बाद में मैं यूथ में इतना डिफरेंस नहीं होगा. नहीं. I'm just 30, जो 24-25 के, जो 22 के बच्चे अभी जो दे रहे हैं, जो हाँ. एग्जाम्स दे रहे थे, हाँ. जो उनको कैंसिल कराने थे, मैंने जो उनके मैसेजेस और जो सारी चीज़ें पढ़ी थी, उसमें एक्चुअली दे वर अब्यूजिंग. सो यू नो, हमारे टाइम पे, हमारा टाइम मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे हम बहुत पुराने बहुत पुराने हो हैं, गए. हम 6-7 साल पुराने हैं, हाँ. लेकिन हमारे यहाँ एक रिस्पेक्ट ज़रूर होती थी टीचर्स के साथ. यार मेरी थियरी वहाँ पे ये है कि रिस्पेक्ट से ज़्यादा ना एक Gap. consequences होते थे कि if I cuss at someone, Yeah. there will be consequences, not just from the teacher, from the dean, and then from my mom, and then from my dad, और फिर आपको पता है क्या होना मेरे साथ, हाँ. right? When you're online, and when your entire, or at least 50% of your existence is online, you are never faced with those consequences. आप एक अपनी फोटो भी लगाने की जरूरत नहीं है. There are no consequences. एक फिल्टर है बीच में सोशल मीडिया का. आप गालियां दे रहे हो, माँ बहन जो आपने कुछ भी है, सब कुछ हाँ, कर दिया. फेक आईडी बना के फेक आप आईडी कर बना दो. दिया आपने. So then you learn to exist without consequences, and when you learn to exist without consequences, फिर आप रियल वर्ल्ड में बहुत हाँ, मुश्किल होता है. होता है. पहले होता था वर्ड ऑफ माउथ, Sure. यू नो,
बात यूं फैलती थी, अगर मैं किसी के लिए कुछ कह रही हूँ, अब तो आप पोस्ट कर लो, 10 लोगों ने देख लेना है, और कुछ नहीं, बहुत कम फ्रेंड्स हैं, 10 तो देखेंगे, 10 तो देखेंगे, वो 10 आगे 10 को बता देंगे, राइट so you know, yeah तो ये चीज़ें बहुत इजी होती जा रही है, जितनी इजी होती जा रही है उतना नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, ऊपर से कंपटीशन, व्हेन यू सी यू नो वी डोंट पोस्ट जो हमारे साथ बुरा होता है, No. वी पोस्ट जो हमारे साथ अच्छा होता sure है, yes यू नो, yes. इफ आई एम ट्रैवलिंग आई विल पोस्ट दैट, yeah उस ट्रैवलिंग पे मैंने मेरे साथ कोई 2 नंबरी हो गई, शायद मैं वो भी लगा दिया, या मैं ट्रैवल गई सिर्फ 2 दिन के लिए, हाँ. किसी काम के लिए, कि कुछ भी, बट मैं शो ऑफ करूंगी, नो आई एम ट्रैवलिंग टू दुबई या Right, यू नो right, right, मलेशिया, कुछ भी Right. इस तरह से करके, तो ये कंपटीशन भी बहुत है. यार देखो उसमें तो मैं जो because I also I'm a photographer by Yeah. by that's the other thing, the other work that I do, photography and videography. Just the amount of work that goes into Instagram ready photographs, that's no one's real life. Yeah. आप जो है Instagram पे देख रहे हो मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए, उसकी जिंदगी ऐसी नहीं है, किसी की जिंदगी exactly. ऐसी नहीं होती आप है, उसी को देख के कंपेयर करना स्टार्ट कर right देते हो, her कि, oh skin my- doesn't even look like that. और यू नो ये बात पता भी है लोगों को, ये यू एंड आई आर टॉकिंग दिस, Yes. और लोगों को भी पता है Sure. कि यू नो सोशल मीडिया इज फेक, Yes बट देन अगेन वो हमारे यहाँ हिट कर रहा है, yes यू नो अफेक्ट करता है, तो हम उसमें कंपटीशन पे आ रहे हैं, Right, of course. स्कूल्स में कंपटीशन है, इवन पेरेंट्स में भी मुझे लगता है कि कंपटीशन होता है. मेरे जो नीस नेफ्यू स्कूल जाते हैं तो उनकी टीचर्स पूछती हैं छुट्टियों के बाद कि आपने कहाँ ट्रैवल किया. आई रिमेंबर आई यूज टू टेल कि मैंने अपने गांव ट्रैवल किया, एंड आई वाज वेरी प्राउड ऑफ इट, yes of course यू नो, yes बट अब हम नहीं बताते. अब No. जब हमने दुबई, स्कर्दू, हाँ. कम से कम अगर आप स्कर्दू बोल दो, हुंजा बोल दो, हाँ. तो दैट्स फाइन, एक्सेप्टेबल है, लेकिन उससे ऊपर जाके आपको इंटरनेशनल तो बताना ही बताना है, यू नो. Right. स्कूल्स में बहुत है, आई एम टॉकिंग Right. अबाउट लाइक जो स्कूल्स हैं, हाँ, जो हाँ. यू नो, हाँ उसमें जाके इस तरह की कॉन्वर्सेशन होती है, और ये हुई है जो मैं उस फैक्ट पे बता रही हूँ जो एक्चुअली मेरे घर में एक्सपीरियंस yeah है. yeah तो I think that highlights a move away from cultural nuances. वैसे आपका गांव था, मेरा गांव सेवन है, लेकिन हम जो है कोई मतलब मैं जब बड़ा हुआ हूँ तब जाता हूँ अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं बचपन में कभी नहीं गया था, राइट. दैट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस, Yeah. एंड देन सिमिलरली हैविंग अ गांव वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस, एंड सिमिलरली गोइंग टू स्कर्दू और इस्लामाबाद और लाहौर और पेरिस व्हाटएवर, दैट वाज आल्सो अ यूनिक एक्सपीरियंस इन एंड ऑफ इटसेल्फ. बट अब जो है as children even we are taught कि certain unique experiences are good, preferred, yeah. certain other ones नहीं, they're not even unique experiences. एक delegitimacy Yeah. आ जाती है. I think that's a problem, because I think वैसे भी we are losing our cultural roots, not just Sindhis, everyone generally, Everyone is, yeah. or just Balochis, or just everyone is, and I think वो जो roots हैं वो हमें लगता है कि उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत ज़रूरी होती है, because all this superficial stuff it flies away, right? अब काफ़ी सारी चीज़ों पे जब मैं अब कल ही लाइक आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड कि मैं देखी थी, मैं कहा पे स्ट्रिक्टनेस थी, आई थिंक सही था थोड़ा बहुत. यार एक हद तक तो सही था, नहीं लेकिन नहीं हाँ. हम अब ऐसी भी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी कि मैं घर से ही नहीं निकल Exactly, yes. नहीं, अब वो तो ऑब्वियसली वो भी खराब करता है आपको बहुत Yeah, ज़्यादा, बट yeah. लाइक मुझे लगता है कि यू नो हमें फिर पेरेंट्स को हम पे नज़र रखते थे, हमसे पूछते थे कि क्या हो रहा है. आई थिंक वो भी एक हद तक सही था. जितनी हमारी यूथ अभी ड्रग्स और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है, Yeah. यू नो, इट्स देयर लाइफ. इन द एंड आई कैन नॉट से एनीथिंग, नहीं, बट नहीं. आई यू नो आई फील बैड एक्चुअली, Sure. क्योंकि ऑब्वियसली हमारी यूथ है, दे Sure. आर लाइक आवर फ्यूचर. That's what they are. Yes. Yeah, you yes, know, yes, तो yes. मुझे ये चीज़ें फिर वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने उसकी पोस्ट देखी, जो स्टूडेंट्स ने गालियाँ दी हुई थी, ये एक रिस्पेक्ट भी बनती है. ठीक है, कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इट्स एक फॉर्मल वे होता है. आप कह रहे हो कि यस कोविड है, सब कुछ है, तो यू नो आप उसको उस तरीके से भी बात कर सकते Yeah, हो. I think एक तो ये चीज़ हुई है, and I think अब मतलब आपको मैं बोलूँगा, आप मान लोगे, बहुत सारे बच्चे नहीं मानेंगे, एक डिप्रिशिएशन ऑफ टफनेस हुआ है. हमारे जो वालिदैन थे ना, बड़े सख्त मजबूत लोग थे, बहुत ऐसे मतलब निभाने वाले लोग थे. हाँ, लाइक अगर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग, हाँ कॉम्प्रोमाइजिंग, अगर सिचुएशन आ गई तो मुंह देना है, देख मुंह लेंगे, देंगे, भागेंगे नहीं. किसी चीज़ से नहीं भागना है, राइट. हम आए, situations were softer, times were easier, there was more comfort generally एक बात कर रहा हूँ. But still एक ये चीज़ होती थी कि अब अगर CI का एग्ज़ाम है,
देना है यार, अब देना है, देंगे, क्या कर सकते हैं. So there was still this thing because we had also not learned to weaponize outrage. अब जो हमारे जो ये छोटे आ रहे हैं, इनको पता है कि आउटरीच से चीजें बदल सकती हैं. अगर हम सिर्फ बहुत शोर मचाएंगे, if और we're social just media पे. on social media obviously, Yeah. if we're rowdy enough, we'll get our way. Yeah. हमारे साथ ऐसा मतलब कभी मेरे ज़हन गुमान में नहीं था कि मैं अगर ज्यादा बदतमीजी करूंगा तो मुझे वो चीज मिल जाएगी जो मुझे चाहिए. सिर्फ हाँ. पिटाई मिलनी थी. पिटाई मिल और कुछ नहीं. वही बात है ना कि हम पोस्ट और इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं. इट्स नॉट जस्ट नेगेटिव. नो नो. बहुत सारे ऐसे केसेस सोशल मीडिया पे आप देखो जो होते हैं. और आप आई रिमेम्बर कोई इस तरह की कोई गाड़ी का लगा हुआ था, तो हमने सब उस पे ग्रुप्स पे पोस्ट कर दिया था, तो वो गाड़ी पकड़ी गई थी. कुछ इस तरह से 3-4 केसेस ऐसे होते हैं जो पता चल जाता है, या कोई बंदा होता है वो पकड़ा जाता है. किसी ने अभी किसी लड़की के साथ कुछ किया था, पता नहीं, इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं. तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है सोशल मीडिया की. इट्स नॉट दैट कि सिर्फ नेगेटिव है, पर उसका एक पॉजिटिव साइड भी. बट देन अगेन कि चीज़ें समझनी चाहिए कि नेगेटिव ज़्यादा काउंट होता है. But we're also commenting on the youth in particular, ना. ये सारे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं या जो पॉजिटिव यूसेस हैं, इसमें ज़ाहिर है यूथ भी इसमें भी कंट्रीब्यूट कर रही है. I'm not saying नहीं कर रही है, बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द यूथ, और सो इट सीम्स, और सो एट लीस्ट वी सी, कि is being impacted by it negatively. And again वही वाली बात है ना, it's simply just this: are you using the social medias or are they using you? It's that simple, na. If you're using them, then they shouldn't be affecting you like this. But if they're using you, तो फिर negativity बिकती है. There was a very very famous makeup artist, ठीक है. जिसके पास मैं गई थी मेकअप के लिए. अच्छा. So he was telling me, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी, जिसने मुझे कहा था कि किंजर हमारे टाइम में ना बड़ा मुश्किल होता था फेमस होना. हमारे आते थे शूट्स मैगजीन्स में, राइट. और कोई पढ़ता था मैगजीन, ठीक है. लोगों के पास कुछ लोगों के पास जाता था. नहीं, लाइक उसने जब बताया तो मैंने सब चीज़ों पे इसको रिलेट किया कि अभी फेमस होना, बदनाम होना भी और वैसे भी बहुत आसान हो गया है. यस. तो उसने कहा यार हमें पापड़ बेलने पड़ते थे, हम जाते थे. और ये अभी की कह रहे हैं, मैं तुम्हें 6-7 साल पुरानी बात बता रहा हूँ. राइट. हम जाते थे, हम लोगों को इन हैंड अपने शूट्स दिखाते थे, मॉडल को मेकअप करके दिखाते थे. अब तो आप घर बैठे हो, आपने एक रूम बना लिया, मेकअप कर दिया, उसको बूस्ट कर दिया, उसको प्रमोट कर दिया, उसको आपने पैसे लगा लिए 2,000-3,000 पे फेसबुक पे, आप फेमस हो गए, आप मेकअप आर्टिस्ट बन गए. अगेन इफ यू आर जस्ट कॉग्निसेंट ऑफ द एल्गोरिथम, ना, कि उस वक्त इंस्टाग्राम पे क्या चीज़ अप्रिशिएट की जाएगी, उस हिसाब से आप चलो. एक अच्छा, आप सही बोल रहे हो, एक अच्छा फिल्टर लगा दिया, अच्छी कैमरा से शूट कर लिया, थोड़ी म्यूजिक लगा दी, एंड यू आर रियली राइट. मतलब नो, बट एक इजी मैं वे बता रही हूँ ना. मतलब पहले हम वैसे उसको अगर हम दूसरी चीज़ों पे रिलेट करें तो पहले चीज़ें मुश्किल, एक स्टेप्स होते थे. यू नो, हम एप्लीकेशन लिखते थे, फिर टीचर के पास जाती थी, टीचर कहती थी नहीं हम प्रिंसिपल को फॉरवर्ड करेंगे, फिर प्रिंसिपल आपको 2 हफ्ते के बाद बताएंगी. सो नो, there was a process. अब हम लोग इतना ईज हमारे बीच में आ गए, आई कैन जस्ट व्हाट्सएप माई टीचर, भाई मैं कल नहीं आ रहा, या कल ये मसला हो जाएगा, सर आप हमें नोट्स दे देंगे. एक प्रोसेस होता था. आई थिंक दैट वो प्रोसेस अच्छा था. हमारे पास होता था डिलेड ग्रेटिफिकेशन, अब आ गया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी चाहिए जो भी चाहिए. बट एक चलो, लेट्स देन शिफ्ट अ पैराडाइम अ लिटिल बिट. ये जो घर बैठे बैठे काम हो रहा है, you speak on women's issues so much, women empowerment so much. ख़वातीन के लिए कम से कम is this not good? It is good. It is very good. Yeah. आप मेकअप का काम कर रहे हो. ख़वातीन वो जो बेचारी एक्चुअली अर्न करना चाहती है ना, मैं उनको मैं अपने आप से कंपेयर नहीं करी. Right. अभी पूरे रमज़ान में जिससे हमारे रोज़ इफ्तारी बॉक्सेस होते हैं, like 100 we distribute every day. माशाल्लाह. तो पूरे 30 days हमारे कवर होते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. So I know this girl जिसने मुझे मैसेज किया था, आई थिंक लास्ट ईयर भी किया था और अभी इस साल रमज़ान से, कि आप मुझे ऑर्डर दीजिएगा क्योंकि मैं इसी से कमाती हूँ. राइट. सो यू नो, एंड इट जस्ट टच माई हार्ट कि वो उसने मुझसे वो नहीं डोनेशन नहीं मांगी. नहीं. उसने मुझे कहा कि आप मुझे ऑर्डर दें, मैं इसी से कमाती हूँ. तो यू नो, ये चीज़ भी बहुत मतलब ये 3-4 चीज़ें देखो हिट कर रही है. एक, हम मांग नहीं रहे क्योंकि हमें मांगने की बहुत आदत है पाकिस्तानियों को. यू नो, बहुत आदत है. हम कहते हैं हमारा हाथ हमेशा यही रहे और खुद आके कोई दे के चला जाए. राइट. दूसरा, ये हाथ हम मेहनत में नहीं यूज करते. उसने जब ये बोला तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप ले लो पूरा ऑर्डर. उसको 1000 बच रहे हैं, 2000 बच रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट वो
अर्न कर रही है मेहनत करके, Yes. अब वो सोशल मीडिया पे लगा रही है या वो उसको कुछ भी कर रही है, तो वो उसकी मेहनत है, Yes. यू Yes. नो. Yes. Yes. तो yes. अब मैं उसको जब प्रमोट कर रही हूँ कि मैंने इससे ऑर्डर किया है, इतने में ये मुझे बॉक्स मिला है इफ्तार का, तो वो भी उसकी मेहनत है जो मैं दुनिया को दिखा रही हूँ. Yes. Right? Yes. 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 तो ये पूरा एक प्रोसेस है, तो ये एक सीधा प्रोसेस है और ये औरतों के लिए बिल्कुल सही है. Right. जो अभी की जितनी भी है, जैसे मैं स्टिचिंग का कह रही हूँ, जो काम जो एक्चुअली कमाना चाहती हैं अपने घर के लिए, जो बाहर नहीं निकल सकती, Mhm. इसी तरह से वही है कि जहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट है या इसका नेगेटिव है, वहाँ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं. बिल्कुल. यू नो, आप ऑनलाइन बैठ के बहुत सारे चीज़ें, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोगों का आप यू नो ये यूजिंग योर स्टूडियो या जो भी है, हाँ. इतना ज़्यादा कोई मुश्किल से नहीं आना पड़ा, पर ये भी एक पॉजिटिव है ना, एक मैसेज जाएगा लोगों को, Right. हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिविटी भी हम दे रहे हैं. Sure. Yes. यू नो, Yes. Yes. ऐसा yes. भी है कि ये भी फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं. Mm-hmm. Mm-hmm. फायदे बिल्कुल हैं. And also I suppose it is not easier. It's not easier. But the process is more clear cut for these people at least. कि यार देखो, you need X amount of followers. Yeah. जिसके बाद you can productivize your work. If you give Kinja your whatever, if Kinja is a client, then Kinja will tell her people, and then they will become your clients, and so Yeah. that's how your business will then grow. And all you have to do is work hard and just be honest with your whatever with your work. I think that's definitely hopeful. और कुछ नहीं तो एक hopeful चीज़. It's a good message, I think. But going back to your motivational speaking and your woman empowerment stuff, where did you start that, and how do you see it going? We've touched upon it पहले भी in this conversation, but how do you see it going? Are men or people generally, even ख़वातीन, are they open to the narratives of women empowerment? Because अभी तक मेरा जिस्म मेरी मर्जी को romanticize करके एक तरफ कर दिया था कुछ अर्सा पहले तक. Do you think it's working? Do you think the conversation is... Well, for me, हाँ. feminism is a very different thing. Of course. है ना? Yes. Yes. मैं ये नहीं कहती मेरा मर्द से मुकाबला है ही नहीं, नहीं है. ठीक है? नहीं. जो भी था, मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, whatever, इन चीज़ों में मैं जाना ही नहीं चाहती, because for me this is wrong. Okay. ठीक है? हर किसी का अपना ओपिनियन है. मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरा क्या है और किसकी मर्जी है. हाँ. ये मेरा है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह. पता है, Yes. यू नो. Yes, और yes. मुझे ज़रूरत ही नहीं कि मैं दुनिया को चीख चीख के बताऊं. सो फेमिनिज्म इज़ बेसिकली, मेरी नज़र में, जो कुछ भी अभी है, जो भी वुमेन एम्पावरमेंट, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में भी ये बात करती हूँ कि आपने अपने काम से लोगों को मनवाना है. ठीक है. अगर इंशाल्लाह. वो औरत है हाँ. जो फर्स्ट पायलट थी, वो माशाल्लाह लड़की से. थी, माशाल्लाह ठीक है, से, yeah. वो आज दुनिया में इसलिए, उसको ज़रूरत नहीं थी कि वो जाके औरत मार्च कर बोले कि नो मैं ये हूँ, मैं औरत हूँ. हम्म. उसने अपनी मेहनत की, हाँ. वो पायलट बनी, वो एक पोजीशन पे पहुंची, सही. उसकी इज्जत है. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह. मेरा मर्द से मुकाबला तब हो जब मैं उसको समझ ही नहीं रही मुकाबले के लिए, तो मैं तब मुकाबला करूँ ना. और मुकाबला बहुत सारी चीज़ों में है. इफ़ यू से मुकाबला, तो फिर हमें बसेस में सीट्स नहीं मांगनी चाहिए, हम भी खड़े हों जैसे मर्द खड़े होते हैं. ओके. हमें भी उस तरह की चीज़ें. फिर हमें जब ओवर टाइम होता है बैंक्स में, तो हम लड़कियों को घर पे भेज देते हैं. तो हाँ, लड़कियों को घर पे नहीं जाना चाहिए, वो भी मर्दों के साथ रात के 9 बजे तक बैठें. ओके. तो इस तरह की बहुत सारे पॉइंट्स हैं. इफ़ यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अ मैन, यू नो, तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं. सही. या इसमें सिर्फ ये 2-3 चीज़ें मैं बोलूँगा. एक तो आप सही बोल रहे हो कि यू एब्सोल्युटली शुड नॉट नीड टू से मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बिकॉज अंडरस्टूड. और किसका होगा? You know, I asked Jibran Nasir, and he's just such a brilliant speaker, कि उसने बोला हाँ भाई तो और किसका होगा? And I was just like, the answer was that simple always, कि नहीं तो और. Yeah. But some men unfortunately इस मुआशरे में do need to be told कि आपका नहीं है, आपकी मर्जी नहीं चल सकती, right? And I suppose there's merit in doing it. Now the way they're doing it, अल्लाह उनको कामयाब करे. I think I agree with what they're pursuing. ये उनकी बात ठीक है, वो उस लिहाज से कहते हैं जिस लिहाज से यू नो रेप के केसेस बढ़ गए अल्लाह हैं रहम करे. या ये सारी चीज़ें हो गई हैं, Yeah. पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा गलत कंपेयर किया जाता है मर्दों के साथ. Right. जो हम कहते हैं कि हम मर्दों, देखिए एक तरीक़ेकार है. अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो कर रहे हो तो उनकी भी शादियाँ होती हैं,
हम लोगों का इस्लाम भी है, हाँ। हमारा एक रिलीजन भी है, हाँ राइट? या अगर हम आपको उससे कंपेयर कर रहे हैं तो वो मुसलमान नहीं है, नहीं ठीक है? नहीं उनका रिलीजन इस्लाम नहीं है। नहीं हमारे यहाँ कल्चर ऊपर हो गया है, इस्लाम नीचे चला गया है। यस You श्योर know? यस यस हम लोगों में ये चीज़ें, अब जो चीज़ें हमें अल्लाह ताला ने फरमाई हैं, हमें बताई गई हैं कि आपको किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, या तो उसमें तो सब कुछ है, औरतों की पूरी अथॉरिटी है तो सही लेकिन देखिए है तो सही, लेकिन फिर वही वाली बात है जो मैंने पहले बोला ना कि अगर मर्द रिलीजियोसिटी को मोनोपलाइज कर लेगा और नहीं देगा औरतों को वो अथॉरिटी, तो फिर उस पे औरतों भी को लेने की ज़रूरत की अथॉरिटी मांगेंगे तब, क्योंकि आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो, आप उसको समझ रहे हो कि आप मुझे अथॉरिटी दो। को मर्द को नहीं तो वो तशद्दुद करते हैं ना यार कीजर। तशद्दुद करते हैं, उसके तरीक़ेकार है, बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। To get आप out of वही it, वाली yeah. बात है, आप इसको सोशल मीडिया को यूज़ करो, Yeah. लगाओ उसकी वीडियो, आप ले जाओ उसको पुलिस में। आप दुनिया को चीख चीख के क्यों बता रहे हो? आप उसको बताओ कि आप मेरे साथ खुदा ना खास्ता कुछ अल्लाह होता रहम है करे, हाँ। तो मैं उस बंदे के साथ लड़ूंगी ना, मैं पूरी दुनिया को थोड़ी बताऊंगी ये मेरा जिस्म है, यू नो? So their argument again, and देखो I'm not on either side, right? I'm just on like I just हाँ, no, हर किसी का अपना ओपिनियन है, Of आई course. रिस्पेक्ट देयर Of ओपिनियन, course. यू नो, बट Yeah. मेरी नज़र में फेमिनिज्म इज नॉट कि मैं मर्द से आगे हूँ। नहीं that's not it, no Yeah. but my argument again is कि और their argument at least is कि ठीक है अब वो वीडियो लगा देगी, उसमें भी आगे मुआशरा जो है बेसिकली पेट्रियार्कल है, आगे जो पुलिस वाले जिसने रिपोर्ट लिखनी है वो भी मर्द है। Their argument is कि हम चीख चीख के लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस मुआशरे को चेंज होना पड़ेगा। You agree with that? मुआशरे को तो चेंज होना पड़ेगा। देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जाएं, हाँ औरतों को पूरी आज़ादी है, उनका माशरा चेंज हुआ है, उनके मर्द भी तो करते हैं। हाँ करते तो है, उनकी मर्दों की खसलत में भी होगा नो, किसी हद मैं तक। जनरली बात हाँ, कर रही हूँ। आप yeah. कोई भी कंट्री उठा लें, Yeah. कितनी आज़ादी क्यों ना हो औरतों को, या Yes. जो भी हम आज़ादी मांग रहे हैं, हम आज़ादी मांग रहे हैं ना, इट्स Yes. आज़ादी मार्च, Yes, राइट? yes, yes, yes. हम आज़ादी मांग रहे हैं, Yes. तो कौन से कंट्री मुझे बता दें जहाँ पर तशद्दुद ना हो औरतों पे? होता है, कम तो है, कम है, Yeah. लेकिन हमारे चीखने से नहीं हो सकती ना चीज़ें। या फिर हमें एजुकेट खुद करें। को एजुकेट करें। हाँ। ये तो नहीं है ना कि आप इतना वल्गर तरीके से आप प्ले कार्ड्स लेके जा रहे हैं और आप दुनिया को बता रहे हैं, मतलब हम एक रिस्पेक्ट भी रखते हैं। चलो फिर yes we can agree on or we can comment नहीं, on मैं उनको नहीं कह रही, नहीं। देखिए अब जैसे जमात इस्लामी का था हाँ। कि मैं आपके साथ खाना पका लूंगी, हाँ। यू नो, ये प्ले कार्ड्स भी थे, हाँ। आओ मिलके खाना पकाते, अब वहीं पे ये प्ले कार्ड्स भी थे, सही ठीक है? मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कुछ ऐसे प्ले कार्ड्स थे हाँ। जिनमें बहुत गंदी गंदी बातें थी, आई कैन नॉट इवन से, no of course यार yes. कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो बहुत ही वल्गर, मतलब एक औरत को हमेशा एक इज्जत दी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, So, you know, yeah. तो आप लोग अगर वही इज्जत जाके दुनिया में उछालेंगे तो कौन कैसे इज्जत करेगा कोई? आप ये बात सही बोल रहे हो, इस पे प्रॉब्लम वही है ना कि समटाइम्स सम ऑफ इट वाज अननेसेसरी वल्गैरिटी। या उनको गुस्सा होगा पर्सनली, जाहिर है तभी लिखा होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, और उनका जायज़ है गुस्सा, बिल्कुल उसमें भी कुछ कोई भी शक नहीं है, लेकिन मीडिया की तरफ से भी थोड़ी रोमांटिसाइजेशन भी थी ना। दोज ब्लैक कार्ड्स, द वंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, माइट हैव कॉन्स्टिट्यूटेड 5% ऑफ ऑल द ब्लैक कार्ड्स, द रेस्ट ऑफ देम वर और देख, इट्स नेगेटिव मार्केटिंग हमेशा ज्यादा हिट होती है, राइट। हाईलाइट वही हुआ ना, सही। जो दूसरे प्ले कार्ड्स थे वो तो इग्नोर कर दिए Yeah, गए, because they were हाईलाइट normal, हुआ। एंड आई एम श्योर इस वीडियो के बाद अगर ये वीडियो हमारी जो आउट होती है, मेरे लिए भी बातें आएंगी कि ओ माय गॉड ये तो सपोर्ट नहीं करी। आई सॉ वीडियो ऑफ दिस एक्ट्रेस, मुझे नाम, मैं सॉरी नहीं, उसने बहुत अच्छी बात की थी कि हमारा तो मुकाबला ही नहीं मर्दों के साथ, हम तो Yeah. मर्दों के आगे हैं, हमारा तो एक अलग अपनी, आप यकीन करें उसकी इतनी अच्छी बातें थी, हाँ। उस पे भी औरतों ने गालियां दी हुई थी। मर्द की तो बात बाद में करें, हम खुद औरतों के साथ ही सही नहीं है। नहीं तो उसमें द प्रॉब्लम इज कि ऑब्वियसली द फीमेल एक्सपीरियंस इज वेरी डाइवर्स ना, जो खातिन गाली दे रही है, जो प्ले कार्ड्स लेके खड़ी हुई है ना, हाँ। मुझे नहीं लगता उनके साथ गलत होता होगा, जो वो होती हैं जो चुप हो जाती हैं। जितने हम वेस्टर्न लोग हैं, मैं एक जो सेल्फ डिफेंस की थी उसने मुझे कहा था, किंजर जितने वेस्टर्न है ना हम, हाँ। जीन्स पहनने वाले, हमसे मर्द डरते हैं, इनको लगता है ये चीखेगी, थप्पड़ भी मार सकती है। हाँ। जो बेचारी अबाए में डरी सहमी होती है ना, उन्हीं के साथ गलत करते हैं। उसने मुझे एक बताया था कि मैं, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है, तो वो कहती है कि मैं जाके कॉलोनीज में ट्रेनिंग देती हूँ इसीलिए, क्योंकि हम लोग हैं ना, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हम चीख के हम थप्पड़ मार सकते हैं, So the privilege, yes, of course, यार, yeah. तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं, Right. लेकिन असल तो बेचारी वो है जो दबी हुई है।
बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, बट अगेन जो उन एक्ट्रेस को भी जो ख़वातीन गालियाँ दे रही थी ना, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि if the female experience is also not a monolith, it's so diverse ना, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि जो गालियाँ दे रही थी शायद उनके साथ कुछ ज़्यादा ख़तरनाक हुआ हो, तभी वो ज़्यादा अग्रेसिव हो रही हो बिल्कुल सकता है, बिल्कुल राइट? हुआ है। बट ऑन द होल आई एग्री विद यू कि the system will change by changing the system, या not by doing anything else. I या बट understand that. उसमें आप बिल पास करवाओ, आप जाके सिंध असेंबली के बाहर बैठो, आप Right. जाके उन्हें बोलो कि कुछ इस तरह का केस हो, हमें ये चाहिए, आप अपनी कंपनीज में पॉलिसीज बनाओ। हाँ मैं कह रही हूँ बिल्कुल ठीक है, हाँ गलत होता है, मैं एक औरत हूँ, मैं हाँ। एक लड़की हूँ, मेरे साथ भी गलत हुआ अल्लाह है, रहम करे। यू नो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गलत होती हाँ। हैं, डिवोर्स रेट बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, Yeah. बहुत कुछ हो रहा है, Yeah. बहुत कुछ हो रहा है, हम नहीं सोच सकते। नहीं और मुझे नहीं पता, मुझसे आगे अल्लाह जानता है लड़कियों के साथ क्या हो रहा होगा, लेकिन उसका तरीक़ेकार मैं कहती हूँ कि ये है कि आप जाएं, आप पॉलिसीज़ बनवाएं। हाँ आप कंपनी में, मैं एक औरत हूँ, मैं अपनी कंपनी में बैठी हूँ, हाँ मैं क्या कर रही हूँ, यू नो बीइंग अ गर्ल, मैंने क्या औरत को फ़ायदा दिया है, I think that's a beautiful मैंने thought. क्या Yeah. HR पॉलिसी बनाई है। Right. आई थिंक कोई बैंक है, इट्स फर्स्ट वुमेन बैंक और सम अदर बैंक, जिसकी प्रेसिडेंट खातून है, Okay. उन्होंने औरतों के लिए पॉलिसीज़ डाली हैं। मैं भूल रही हूँ, ये मुझे 4-5 दिन पहले किसी ने बात बताई है। That's beautiful, तो right? यू नो मैं एक लड़की होके, एक औरत होके मैंने क्या फ़ायदा दिया है? Wonderful, right? So, but my thing again would be, would you not accept कि the Aurat March being what it is now is contributing to the acceptability of these bills? क्योंकि इससे पहले ये गुफ्तगू उनने कम से कम गुफ्तगू तो शुरू की ना कि भाई ये सारे गंद होते हैं, उसमें थोड़ी वो ज़्यादा गालियाँ दे दी उनने, थोड़ी हाँ, ज़्यादा। मैं तो उनके वल्गर, मैंने जमात इस्लामी का जब देखा, मतलब आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। Yeah. उनके जो प्ले कार्ड्स थे, औरतें जिस तरह से ड्रेसअप थी, मतलब वाज अमेजिंग। Yeah. इस दफ़ा का औरत मार्च था, मतलब मैं लड़की होके मुझे शर्म आ गई कि आपने कमीज़ रस्सी पे लटकाई हुई है, शलवार रस्सी पे लटकाई है और आप नीचे डांस कर रहे हो। दिस इज़ नॉट आवर कल्चर। This isn't our culture, no. या इवन ये कल्चर भी नहीं है, लेकिन ये तो रिलीजन भी नहीं है। नहीं ये तो कुछ भी नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है कि आपने यू नो शलवार कमीज आपने एक रस्सी बना के आपने लटकाई हुई है। इट्स अ वेरी फेमस वीडियो हाँ। जो चल रही थी और उसके नीचे कथक हो रहा है। चलो नहीं, उसमें मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि ठीक है, they think they're fighting patriarchy like this. I would disagree with this क्योंकि propriety and manners and आप respect, लड़ो, decency. मैं आपके साथ खड़ी होंगी। लेकिन अगर वो इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना भी चाह रहे हैं, इसमें मर्दों को नहीं अच्छा लग रहा है ना देखें। नहीं, मैं मर्दों की तो नहीं। बात ही नहीं करी, मैं तो कल्चर की बात कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिवली आप बोल रहे हो इंडिसेंट मैं नहीं होना चाहिए। मर्दों की तो मैं साइड ही नहीं ले रही। नहीं ज़ाहिर अगर है। एक गंदा है, यू नो टू रॉन्ग्स कैन नेवर बी, यू नो नो दे हम डोंट। उसको नहीं राइट कर नहीं सकते। जब मैं गंदी हूँ और मैं वही गंदगी दूसरा भी कर रहा है, तो हम चीज़ों को सही नहीं कर सकते। मर्द चलो है ही गंदे, हाँ उनका तो है ही गंदा, सॉरी हाँ, नहीं it's okay। तो उनका तो है ही गंदा, हाँ। ठीक है, हर चीज़ के काम गंदे हैं। हाँ लेकिन हम भी तो एक गंदा ही मैसेज दे रहे हैं ना, हम कोई अच्छा मैसेज तो औरतों को नहीं दे रहे। हाँ। हम भी क्या दे रहे हैं, हम कोई पॉजिटिव तो नहीं दे रहे ना। हम हाँ रहते हो कनाडा, अमेरिका, मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। मतलब पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री, Yes। बहुत सारी दुनिया में वीडियोस ये चली हैं, देखा गया है। हम कौन सा कोई अच्छा मैसेज दे रहे हैं? यार नहीं। हाँ अच्छा चलो देखो, आई विल से दिस, आई विल से अगर मुझे लगता है कि इधर, मुझे पर्सनली लगता है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ इसको, आई थिंक बहुत इजी करने के लिए, कि मैं, मेरे 10 फ्रेंड्स धक्के खाएं। हाँ। हम साल में एक दफ़ा निकलते हैं ना औरत मार्च पे, हाँ। दैट्स 8 मार्च राइट, या आई डोंट नो, वुमेन्स डे पे ही होता है, 4 मार्च या पता नहीं जो भी। हाँ हम एक साल निकलते ना, हाँ मैं पूरे 6 महीने निकलूंगी हाँ और मैं जाऊंगी बिल पास करवाऊंगी, हाँ। यू नो, देन आई मेड अ चेंज। Acha, so I had this argument with someone. The organizers of the Earth March are working on those things, are working on bills, are working on education and all those things. जहाँ तक मुझे समझ आता है, देखो, and again there is in our women empowerment narrative there is Western influence. होता है, wholesale हमने language वहाँ से import किया, मैं समझ रहा हूँ वो बात को, but more than anything else the march is to show solidarity, right? कि यार हम सब एक दूसरे के साथ हैं, you know, आप अकेले नहीं तकलीफ में हो, और आप अकेले तो हो ही नहीं किसी भी, और आप गलत भी नहीं हो, बिकॉज जो भी औरतें आती हैं यहाँ पे औरत मार्च पे, they're not just from
our social class, they're from every social class, every social rung. बहुत सारे अलग अलग मसाइल हैं. अब जाहिर है उसमें ज़्यादा आवाज़ उनकी उठती है जो ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, जो ज़्यादा आर्टिकुलेट हैं, और वो बाज़ों का थोड़ी ज़्यादा वेस्टर्न नोयत रखते हैं, तभी वो हमें नज़र आता है. बट रियली आई वुड थिंक कि on the whole the Earth March has been quite positive, I think. As far as the cultural thing is concerned, sure, yeah, I disagree with that as well कि यार ये हमारा culture नहीं है, but maybe they don't adhere to that culture. Maybe वही वाली बात है ना, maybe they don't adhere to this religion and this culture. कि चलेंगे, ठीक है, आप ये करो. मुझे I personally think हाँ किसी हद तक तमीज़ होनी चाहिए पब्लिक में, किसी हद तक. बस मेरा कंसर्न ये है, मेरा ये कंसर्न नहीं कि नहीं औरत मार्च ही नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना, जो मतलब आपकी कुछ हद तक आप, क्योंकि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Sure, so, you know, अगर हम इस तरीके से औरतों के हकूक मांगेंगे तो जिन्होंने देने भी होंगे वो भी नहीं देंगे अपनी बच्चियों को. so, you know, क्योंकि हमारे में गैप है. हम वेस्टर्न जो हम लोग हैं, हमारी जो सोशल क्लास है, हम लोग जा रहे हैं औरत मार्च में, ठीक है. जो बेचारी जो हैं, जो अब पर्दे करने वाली या जिनके घर में इजाज़त नहीं मिलती, डू यू रियली थिंक कि वो ये औरत मार्च देख के उनको इजाज़त देंगे? So now there's a question. नहीं, so the answer from there is कि वो कोई होते नहीं है इजाज़त देने वाले. And I disagree with that, right? तो फिर आप किसके लिए लड़ रहे हैं? कि इजाज़त मांगने की ज़रूरत ना हो. नहीं, ऐसे नहीं, इजाज़त मांगने की ज़रूरत होनी चाहिए. You think so? ऐसी बात है, मतलब हमें हस्बैंड का चलो अगर आप कह रहे हो, बट पेरेंट्स की एक रिस्पेक्ट है. अगर हम वही सिखा रहे हैं, अगर हम यही सिखा रहे हैं कि आप अपने माँ बाप से इजाज़त ही ना लो, तो हम तो गलत सिखा रहे हैं. But at the same time, and you've done work on this, parents do need to be educated. बहुत सारे पेरेंट्स भी अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि बिल्कुल ही मैं बोलूँ मैं फ्रेंड के पास जा रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स बोले नहीं 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 आपने जाना ही नहीं, आपने घर में बैठना है. दिस इज रॉन्ग. बट इफ उनको कुछ पता है कि मैं रात को 3 बजे उठ के जा रही हूँ, रात को 3 बजे उन्हें लगता है कि दिस इज नॉट सेफ, तो वो मुझे मना करना उनका हक बनता है. देयर इज अ फाइन लाइन. एग्जैक्टली. हाँ, मतलब इसमें और अगर कर भी दिया, एक्सक्यूज मी, तो कौन सी बड़ी बात है. अब मैं मतलब इट्स दैट कि मैं ये सिखा रही हूँ कि आप अपने माँ बाप से लड़ो. सो देन वेयर इज औरत मार्च? औरतों के हकूक का है. हम तो फिर ये सिखा रहे हैं कि आप अपने माँ बाप से लड़ो. नहीं. So that's not the only thing that they're saying obviously, but they are saying कि आपके हकूक जो हैं they are not your. देखिए बहुत सारी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता. हाँ, exactly. ठीक है. आप बात करो, आप बोलो, वो तो बातें हो रही हैं. ठीक है. आपने ये करना है कि देखो आप बहुत बड़ी बातें हैं जो मैं कर रही हूँ. इट्स नॉट ईजी. नो. लेकिन जितना हम टाइम, खर्चा, मेहनत इस चीज़ में लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ लड़की है हमें पता होता है ना घर में गवर्नमेंट को, आप उनको एजुकेशन दो, उन पे बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि मैंडेटरी कर दो कि आपने इंटर तो करवाना ही करवाना है. राइट. आप इसके लिए जाओ, आप इसके लिए मेहनत करो. किंजर आप बिल्कुल सही बोल रही हो. और वो लोग काम, उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ना, औरत मार्च इटसेल्फ, वो कर रहे हैं. राइट. मेरा जो सिर्फ जहाँ पे वेर आई सपोज आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद यू बट आई डू अग्री विद देम इज कि कभी कभी ना लोगों को जगाना पड़ता है. हम सब सो रहे थे औरत के इश्यूज पे ना, ये सारे मसले तो हो रहे थे ना. आई सपोज द पावर ऑफ द औरत मार्च इज सिंपली कि भाई उठो ना, क्या कर रहे हो, क्यों सो रहे हो अभी तक. हाँ, वो तो सही है. मैं देन अगेन वही बात कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे थी औरतें जिनके प्ले कार्ड्स पढ़ के सब कुछ करके एक्चुअली मुझे प्राउड भी फील हो रहा था. राइट, ऑफ कोर्स. बट वहीं पे अगर ये चीजें हो रही थी तो वो नजर नहीं आया. आप मुझे बता दें आपने कौन से प्ले कार्ड्स देखे हैं? जो आप मुझे 5% का रेशियो बता रहे हैं, सबने हमने 5% ही देखा है. मीडिया वही दिखा रहा है ना, अब क्या करोगे आप. राइट. हम इंस्टाग्राम पे उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं, मुझे नहीं पता क्या है. राइट, बिकॉज ऑल द अदर पीपल. तो यही है ना, आपका नेगेटिव ही तो सारा कुछ जा रहा है. हाँ. आप कर रहे हो, आप में ये, अगर हम कहते हैं, अब देखें अगर हम स्पीच भी दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं औरत ये कर सकती है, औरत सब कुछ कर सकती है. मैं बताने की जरूरत ही नहीं है. हम, और अगर आप बता रहे हो, आप ठीक है, करके दिखाओ, आप बोल रहे हो, आप करके भी दिखाओ. यू नो, आप उस चीज को करके दिखाओ. बहुत, मेरे सेंटर में एक ऐसी लड़की है जिसको पायलट बनना है, इंशाल्लाह बनेगी. उसकी फैमिली को नहीं पता कि वो मेरे पास स्टिचिंग सीखने आती है, वो मदरसा का कह के मेरे पास आती है. See, the Aurat March wants to change that
हाँ, है, that ठीक है? reality, yeah. No, but then again, she's trying. She is trying. She's trying, She you is know. trying. She's coming to the center हाँ. every day Yeah. and learning the skill. और फिर उसके बाद जब मुझे उसकी स्टोरी पता चली एंड उसने कहा मेरे फादर नहीं है, अल्लाह मेरे रहमत। मामू मुझे पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि हम मामुओं के साथ रहते हैं. सही. So और मुझे पायलट बनना है. So I gave her this one day experience, air experience, सही. जिसमें आपको वन डे पायलट बनना पड़ता है सही. और आप चलाते हो सेस्ना प्लेन. सही. तो मैं उसको लेके गई और मैंने जब उसकी फैमिली से इजाज़त ली वो खुश हो गए. हाँ. तो यू नो व्हेन यू फॉलो द राइट पाथ Sure. तो एक तरीके अब देखिए मुश्किलात तो आती है ना. ज़ाहिर है. अब रास्ता है, मैं या तो किसी से छीन लूँ, हाँ. ठीक है, हाँ. और खा लूँ, हाँ. या मैं एक रास्ते पे जाऊँ उसको बोलूँ कि यार देखो ये चीज़ मेरी थी आप मुझे दे दो. एक रास्ता है, मैं पुलिस को ले आऊँ, मैं इसको ले आऊँ, मैं इसको बोलूँ ये मेरा है मुझे दे दो. हाँ. तो यू नो आप आपका है लेकिन आप चोरी नहीं कर सकते. गलत है ना चोरी करना, पर हम ये सिखा रहे हैं कि आप चोरी करो, आप छीन लो. आप छीन लो, आपको नहीं मिल रहा आप छीन लो. हाँ. तो वो नहीं दे. So I'm torn, right? I do agree with you. You're right, right? But I also at the same time do agree with them कि इतना मुश्किल उसके लिए कभी होना ही नहीं चाहिए था उस खातून के लिए, उस बच्ची के लिए. वो बात कर रहे हैं लेकिन हाँ. मुझे मैंने जितना देखा है, मे बी आई एम रॉन्ग, हाँ. मैंने जो आप बात कर रहे हैं मैंने इस इशू को कभी इतना हाईलाइटेड नहीं देखा. Right. यू नो उन्होंने हमेशा आके यही बोला ये मेरा है ये मैं करूंगी. हाँ. खाना खुद गरम कर लो, खाना खुद पका Right. लो. Yeah, You वो know, placards हैं. हाँ. अब आप जो बात कर रहे हैं दैट इज अ वेरी डिटेल्स कॉन्वर्सेशन जो कि मैंने कभी नहीं सुनी. Yeah, देखो, unfortunately, this is also I'll segue करते हैं. This is exactly why I started the podcast initially. Obviously, आप देख रहे हैं कोई इसमें पैसे वैसे नहीं होते, ऐसे कोई चीज़ नहीं है. तो my only thing was we are so incapable of having nuanced conversations. ये जो गुफ्तगू है ज़ाहिर है डिटेल में जाना पड़ता है ना. And a march and that march obviously इतनी एनर्जी होती है, इतना वो होता है, गुस्सा होता है या रिलीज होता है, जो भी आप उसको बोलो, वहाँ पे इतनी नुआंस्ड कॉन्वर्सेशन ज़ाहिर नहीं हो सकती है. राइट. तो वही वाली बात है ना, व्हेन इफ इट्स इनकम्प्लीट एक चीज है तो जब मुझे ही मैसेज मिल रहा है हाँ. तो औरों को क्या मैसेज मिलेगा. राइट. हाँ. सो देन द मीडियम Now मे it's बी. you हाँ. who is telling me कि डिटेल में कि नहीं वो ये चाहते हैं क्योंकि हाँ. आपकी कॉन्वर्सेशंस हो चुकी हैं. हाँ. यू नो. Yeah. बट अगर मेरे सामने सिर्फ प्ले कार्ड्स चल रहे होंगे और मैं लड़कियों को वहाँ पर डांस करते हुए देखूंगी और मैं बोलूंगी आज़ादी आज़ादी आज़ादी, तो मैं क्या पोर्ट्रे करूंगी. हाँ, आप बोलोगी एटलीस्ट आई डोंट वांट टू एसोसिएट विद दैट, एटलीस्ट दैट. यू नो मैं यही that's not पोर्ट्रे good. करूंगी ना कि यार वहाँ उनको शायद चाहिए कि हम डांस करना, सब कुछ सही है, बहुत कुछ सारी सही है. चीज़ें ऐसी होती हैं हम करते हैं बट हम उसको खुल के नहीं कर सकते. बहुत सारी चीज़ें इवन मर्दों में भी. राइट. आप अपने बाप के साथ बैठ के ड्रिंक नहीं करोगे. नहीं. बहुत नहीं, कम नहीं. फैमिलीज होंगी, शायद होता होगा, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात बहुत है. बड़ी बात है. नहीं यू ऐसा नो होता. हाँ. अगर हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें, इसका मतलब तो ये है ना हम नॉर्मलाइज करें कि भाई हाँ तो क्या हुआ, बाप और बेटा पी सकता है साथ यार, में. पर आप जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो, पर्दा जो होता है ना, वो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है मेरे ख्याल में. मैं हाँ. अपने रिलीजन से बात कर रही हूँ, मैं पर्दा नहीं करती. नहीं नहीं. यू नो नो नहीं, नहीं. मैं हाँ. नहीं पर्दा कर अबाया रही. नहीं करते हो आप? अबाया नहीं करती, पर्दा हिजाब एकदम- नहीं करती. हाँ, मैं हाँ नमाज पढ़ती हूँ, कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े हाँ, रखती हूँ. हाँ. मैं शायद गलत भी करती होंगी. राइट. हाँ. मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने फरमाया है मैं फॉलो नहीं करती. हाँ, अल्लाह बट माफ़ देन करे, अगेन मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि यार बस मैंने सब कुछ ही छोड़ दो. सब कुछ छोड़ दूँ हाँ. क्योंकि ये नहीं है. नहीं. और एंड व्हेन आई सेड पर्दा ना, आई वाज स्पीकिंग अबाउट इट द कोलोकियली. दैट पर्दा जो एक पेरेंट्स की और बच्चे Exactly. so Like my I have friends, right? They're my age, a little older. सबको पता है they smoke, dude. आपकी मतलब सबको पता है. yeah. Still will not smoke inside the house. Still will not smoke in बहनों के front of their सामने नहीं parents. हाँ, पिएंगे. नहीं. ना ये एक रिस्पेक्ट होती है. Right. So Yeah. you know, Yeah. so हम तो ये सिखा रहे हैं कि आपने रिस्पेक्ट ही नहीं करनी. यार देखो, आप अपना हक मांग रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो. हाँ. आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आपने जो है बच्ची को पढ़ाना है. अब इंशाल्लाह, मैं yeah. बिल्कुल इस चीज़ को अग्री करती हूँ, आप बिल्कुल सही कर रहे हो माँ बाप. लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं आपने ये ऐसे, अगर आपको आपके पेरेंट्स मना करें आप दरवाज़ा मार के चली जाओ क्योंकि आपका हक है, आपने निकलना है, दिस इज़ रॉन्ग. वी आर टीचिंग देम रॉन्ग. यू नो ये तो वही वाली बात हो गई कि वो जो बच्चे उनको गालियाँ दे रहे हैं हाँ. तो फिर तो वो भी सही है, सही कर रहे हैं. हाँ. तो सही है, उसको हाँ. गालियाँ देने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए. Right. So, you To know, some degree, yeah. To तो some फिर degree. ये तो वही सारी बात है. तो इट्स हमारा मसला सिर्फ ये है कि हम वही देखते हैं जो हमें सही लगता है और हम कहते हैं ये सही है Uh-huh. क्योंकि हमें ये करना है. Uh-huh. You know? Sure. तो
ये मेरे दिमाग में ये चीज़ है, मतलब मेरा सिर्फ जो पॉइंट ऑफ व्यू है शायद मैं क्लियर नहीं कर पा रही, जस्ट कि एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और हाँ, लड़की को पूरे हकूक मिलने चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको जॉब भी करना चाहिए, उसका जो करियर है उसको वो चाहिए, उसको वही होना चाहिए जो एक मर्द और एक बेटा को होता है, बेटी के साथ भी वही होना चाहिए। मैं बिल्कुल उस पर अगर मैं दुपट्टे उड़ा के बोल रही हूँ कि भाई हक दो, तो कहाँ से उसके माँ बाप हक देंगे? वो बोलेंगे कल को ये भी दुपट्टा मेरे सामने उड़ा के बोलेगी। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पठान फैमिलीज भी हैं, हमारे यहाँ बलोच फैमिलीज भी, उनके अपने कल्चर हैं, राइट, ठीक है। राजस्थानी भी हमारे यहाँ जो अभी तक घूंघट करते हैं, इफ यू डोंट नो, आई नो पीपल जो अभी तक घूंघट करके अपने देवर के सामने बात करते हैं। अब ये उनका कल्चर है। अगर मैं उन्हें बोलूं कि आप घूंघट उड़ा के अपने देवर के आगे खड़े हो जाओ और आप बोलो भाई क्यों मैं घूंघट करूं, दिस इज रॉन्ग। सो देखो ना, अब people argue कि these cultures are backward, right? These cultures are archaic. ठीक है, अब वो उनकी गुफ्तगू है। लेकिन एक सिंधी को बोले समझ में आता है, पठान उठ के सिंधी को बोलेगा तुम्हारा क्या काम मेरे कल्चर से, राइट? ओके, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि what you're, I suppose, asking for is cultural literacy when you have these conversations. Just that कि भाई ठीक है, staying within your culture, still give your son as many rights or whatever as your daughter. That's what you're saying. That's all you're saying. Say that's fair, I suppose. But rights हैं तो फिर, और मैं लड़कियों को मैं अपने आप पे कहती हूँ, अगर मैं राइट्स की बात कर रही हूँ तो राइट्स बहुत, वही मैंने जो एग्जांपल शुरू में दी कि अगर मैं किसी बस में हूँ तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए कि कोई मर्द सीट पे बैठा है। नहीं, अच्छा, यहाँ पे यू एंड आई विल डिसएग्री ऑन दिस कि मैं समझता हूँ इक्विटी होनी चाहिए, इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी इज़ व्हाट यू टॉकिंग अबाउट कि भाई ठीक है, राइट्स है तो मतलब ये है कि बस, अब जैसे बस पे आप भी खड़े रहो, मर्द बैठा रहे, कोई मसला नहीं है। द प्रॉब्लम इज that's not the reality. The reality is, scientifically speaking, men have greater bone density, greater musculature, greater strength on average. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आप सरीना विलियम्स से कंपेयर करोगे, जाहिर है उनके पास ज़्यादा है, शी इज़ अ प्रो एथलीट, राइट? बट आप सरीना विलियम्स को उनके कैलिबर के मर्द से कंपेयर करोगे, उस मर्द में ज़्यादा होगी on average. That's just how it is. So the female sex is at least weaker physically, at least in that particular paradigm, not pain tolerance, not anything like that, but at least in that. तो जो भी फिजिकल नौयत का काम है वो फिर मर्द का फर्ज है कि ज़्यादा करे, और औरत का वो तो ठीक है, लेकिन ये इट्स यू हु, ये जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया ये है, लेकिन आप आगे मुझसे पूछो या किसी से भी पूछो, तो हम जब बस में खड़े होते हैं तो हम औरत को औरत की वजह से रिस्पेक्ट देते हैं कि बैठो। जाहिर है, इट्स नॉट दैट कि यू नो कि यही जो फिजिकल और इस तरह से, ये तो सोच नहीं, ये तो बैक वो है ना, फाइन प्रिंट। पहला तो ये होता है ना कि औरत है, इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बैठो। ऑफ कोर्स देयर शुड बी डिफरेंस। तो एंड अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इक्वालिटी की जगह अगर हम इक्विटी पे जाएं, एंड इक्विटी इज all of us are given the same rights, but according to our individual ability. So if I'm taller than you, right, and we both have to look over a wall, right, I don't need a ladder but you do. Yeah. So equality would be हम दोनों को दीवार के सामने जाके खड़ा कर दिया, करो जो करना है. I have greater ability now because I'm taller. Equity would be you are given a ladder, भाई आप और काजी दोनों देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है. So equity I suppose is what we should go for. Yeah, हाँ, फिर तो obvious सी बात है. Yeah. So the other thing, the other thing I was saying then was, and I suppose this is a good place to finish up this conversation. Conversations like this, these are difficult conversations. Have you ever had these with people in your line of work? Yeah. And how do they respond? Are they open to it? Like, you know, some are like this feminism वाला कि नहीं ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सही कर रहे हैं, इस तरह कुछ agree करते हैं, जो मेरा point होता है. But then again, I'll say this, that I respect, but my point of view is different. हम किसी पे अपना point of view थोप नहीं सकते. नहीं. You know? नहीं. So अगर आप कर रहे हो, मेरी नज़र में, अगर मैं औरत मार्च में जाती नहीं हूँ, पर मेरी नज़र में मुझे लगता है कि मैं अगर सोसाइटी को चेंज कर रही हूँ, so I'll start with my own daughter. Inshallah. Sure. Right? Sure, yes. So if you want to change something, go change yourself first, your family, and then come out. So, you know, मैं अगर करूँगी तो मैं अपनी बहन को change करूँगी. मेरी नज़र में, it's my point of view, you know, मेरा opinion, and that's how I think. Of course. You know, आपका है, आप 1000 लोगों को लेके निकलो, 2000 लोगों को निकलो, या आपका तरीक़ेकार. Right. मेरे तरीक़ेकार में ये है कि मुझे
काम करना है Uh-huh. सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, Uh-huh. और मुझे फ़र्क लाना है इससे Inshallah. कि मैं पॉवर्टी कैसे कम करती हूँ, Uh-huh. मैं चेंज कैसे लेकर आती हूँ, मेरी ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा होता है, Right. लोग डिप्रेशन में क्यों हैं. मेरी बहन, अगर मेरे, आई डोंट हैव अ सिस्टर, No. बट अगर मेरी कोई बहन होती Yeah. तो मैं, अगर उस पर स्ट्रिक्टनेस होती, उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती, तो मैं उसके लिए घर में आवाज़ उठाती. जब मैं उसमें आवाज़ उठाऊंगी तो मैं अपनी बेटी के लिए उठाऊंगी. Inshallah. जब मैं अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाऊंगी, दैट्स अ साइकिल. मेरी बहन मेरी दोस्तों को बताएगी, अपने दोस्तों को बताएगी, मैं अपनी दोस्तों को चेंज करूंगी, Sure. वो अपनी दोस्तों को चेंज करेंगे, वो अपने पेरेंट्स को जाके चेंज करेंगे. सो इट्स अ साइकिल. Right. समवन टोल्ड मी दिस कि एक रेडी वाला था, Uh-huh. उसका बच्चा बहुत ज़बरदस्त पढ़ता था बट उसके पास पैसे नहीं थे. Sorry. तो उसने, उसको बंदे ने फ्रूट खरीदने आया, एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी. Alright, तो alright, उसने कहा साहब मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है, मैं तो ये कमा के जो है ना ये उसकी फ़ीस पे करता हूँ. तो उसने उसको पैसे दे दिए. IBA में गया या पता नहीं किस में गया, जो कुछ उसकी फ़ीस वो पूरे 4 साल तक भरता रहा. फिर वो एक पोस्ट पे आया, उसकी जॉब हो गई, सब कुछ हो गया. वो उस बंदे के पास आया जो 4 साल से उसकी फ़ीस भर रहा था. उसको बोला आपको क्या चाहिए. उसने कहा मुझे ये चाहिए कि तुम जो मेरे लिए गिफ्ट लाओ या मेरे लिए कुछ करो ना, मेरी तरह तुम आगे किसी की फ़ीस भरना 4 साल. Yeah, that's a beautiful thing. Yeah, sure. सो Yeah. दैट्स अ चेंज. Yes, yes, yes. अब जब वो मैसेज आगे देगा तो वो आगे मैसेज देगा, वो आगे मैसेज देगा. तो डॉट्स की हम गेम्स खेलते थे, कनेक्ट द डॉट्स. Right. तो वो इस तरह से, तो मैं, मेरी नज़र में अगर मैं कुछ करूँगी, मैं अपने ऑफिस में पॉलिसीज़ बनाऊँगी. Mhm. रियल स्टेट की मैं रिसेंटली मेरा ऐलान के साथ इंटरव्यू था, उन्होंने रिकॉर्ड की थी मेरी जर्नी. Mhm. तो मैंने यही कहा था दैट वी नीड फीमेल Of course. इन रियल स्टेट, Of course. एंड दिस इज़ एन अमेजिंग इंडस्ट्री. We went into women empowerment for a little while, लेकिन उससे पहले जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी That was about real real estate में मैं यही सोचता हूँ ना कि आप ऐसे देखो कि अंदर रहना किसने है घर में, हाँ. ज़्यादातर ख़वातीन ने रहना है ना. ख़वातीन है. तो doesn't it readily make sense? Some of the best real estate agents abroad lived in Canada for a bit were women, Yeah. because women are comfortable talking to other women. Or even men are comfortable talking एंड to वुमेन women. आर द डिसीजन मेकर्स. Sure, yeah. घर लेने के. तो मेरा हमेशा उनका लास्ट मैसेज ये था दैट औरतें, लड़कियां आएँ इस इंडस्ट्री को और चेंज करें, ये Normalize टैबू करें. ख़त्म करें Yeah, कि yeah. नहीं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कोई अच्छे घर की लड़की नहीं आ सकती. सो वही आती है जो बेचारी नीडी होती है या क्या होती है, बिकॉज इट्स इजी मनी या पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें. Right. लेकिन ये मेरा ओपिनियन है. Uh-huh. मैं इस तरह से 10-15 लड़कियां जमा करके मैं चेंज लाऊंगी अपने ऑफिस में. To be fair, in Karachi, I've not met a single real estate agent that's a woman. I haven't. This is the first Yeah. time. Yeah. And I've been here for a while. I was wanting to speak to you about this one other thing that you said before the podcast, where we commented on इनके साथ हुआ है, अल्लाह रहम करे, मानी की जो वो है, Wife, हाँ, Hira Mani, yeah. जो वो घर के बाहर ही गाड़ी खड़ी हुई थी, एंड देयर वर दोनों तरफ से मोटरसाइकिल पे लोग आए, दे ट्राई टू स्टील समथिंग फ्रॉम देम, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ इट्स बिकम मोर रैम्पेंट, एंड आई सेड इट्स बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, एंड you said no it's not, poverty तो होगी, लेकिन there's another thing. Let's end this podcast with that. What were you thinking about that? मुझे लगता है हम वही है ना, हमने लोगों को हक छीनना सिखा दिया है. अब बहुत अच्छी फैमिलीज़ की भी अगर बीच में जब पकड़े गए थे, जब इनकाउंटर्स वगैरह हुए थे, तो पता चला था कि बड़ी अच्छी फैमिली का बेटा था जो चोरी कर रहा था. Right. सो इस तरह के बड़े केसेस भी आते हैं. अब कराची में, सिंस आई एम डूइंग चैरिटी ऑल्सो माई सेल्फ, Yeah. अल्हम्दुलिल्लाह हम टैक्स दें ना दें, हम डोनेशन बहुत देते हैं. हाँ. हम टॉप पर आते हैं. हाँ, डोनेशन में कराची. डोनेशन में, हाँ, टॉप पर आता है Yes. कराची, और कराची पूरे पाकिस्तान में देता है. Yes. कराची से पूरे पाकिस्तान में जाता है. इंटीरियर सिंध में आप चले जाएं, कहीं पे भी. Karachi is one of the countries that is the philanthropic capital of the world. Yeah. हाँ, पूरी दुनिया का. या. तो कराची, तो मुझे नहीं लगता कि इट्स दैट कि हमारे जिसे हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो भी लॉ एंड ऑर्डर वो है हमारा बहुत वीक है. Mm-hmm. अगर मैं सामने खड़ी होंगी, मैं आप एग्जांपल अपनी Yeah, देती sure, हूँ. of course, yeah. एक लाइन है हाँ. बनी हुई है और 10 लोग खड़े हुए हैं, Uh-huh.
और मुझे मौका मिलेगा कि मैं इसे बहाने से इस लाइन से चली जाऊँ, चोरी से, मैं चली जाऊँगी. हर कोई You चल know? जाएगा. या So it's not the government who is corrupt है, but it's us also. राइट हम भी करप्ट हैं. राइट. सुनो, तो हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई हो गई है, खाने को नहीं मिल रहा, या इसलिए चोरियां बढ़ गई हैं, या इसलिए हो गया है. नहीं, इस तरह से नहीं है. अगर वो एक गाड़ी चोरी कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो 8 महीने तक तो बैठ के खा सकता है. हाँ गरीब ही होगा ना, चोरी करेगा. हाँ 25 लाख की गाड़ी चोरी कर रहा है, चलो उसको 20 में भी दे रहा है, चलो 15 लाख में भी दे रहा है, हाँ तो वो 6 महीने तो बैठ के खा सकता है. श्योर लेकिन वो दूसरे दिन बाद दूसरी गाड़ी चोरी करेगा. राइट. सो यू नो, तो ये कुछ हमारा, मुझे लगता है हमारा अपना शौक भी है हमें हक छीनने का, और हमारे पास एक लॉ ऑर्डर कोई है ही नहीं बना हुआ. यू नो, कोई कि किसी ने कुछ गलत किया तो हमें क्या करना चाहिए, उसको क्या सज़ा देनी चाहिए. सिग्नल अगर, क्योंकि मैं जो ग्रुप चलाती हूँ DHA क्लिफ्टन अपडेट्स राइट में, दैट्स द अदर वन. या उसमें मैं, क्योंकि मेरे पास फ़ोन उसी टाइम हो रहा होता है, मैं देख रही होती हूँ कि मुझे पता है मैं सिग्नल पे खड़ी होंगी, मेरे सामने 4 बाइक वाले निकल के चले जाएंगे एंड सिग्नल इज ऑन द रेड. यस ठीक है, हम चले जाएंगे, गाड़ियाँ भी निकल जाएंगी. यस सो देन इट्स अस ना, जब हमें पता है कि हमें सज़ा मिलनी चाहिए, पुलिस वाला वहाँ खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम कचरा फेंकते हैं, हम कहते हैं CBC ने कचरा नहीं उठाया, फेंक तो हम रहे हैं जब डस्टबिन पड़ी हुई हैं. तो CBC की बड़ी सी डस्टबिन होती है, यू नो, बिन्स होती हैं, और साथ में हम उसके नीचे कचरा फेंकते हैं. But whatever, so is there a lack of education or civil Education. responsibility? What is it? एजुकेशन ऑल्सो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ येस. हम लोग, अगेन मैं यही करूँगी कि हम कंफ्यूज नेशन है. We are confused. ठीक है, हमें नहीं पता, हम रहते हैं जो चल रहे हैं उसी में चल रहे हैं. सही ठीक है, सही सिग्नल खुला है, बंद है, बस निकल के चले जाना है हमें, क्योंकि हमारे कोई कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं है. क्योंकि हमारे साथ कुछ अगर हो गया, मेरे साथ अगर मुझे किसी ने रोका, मेरा दादा, मेरा चाचा, मेरा मामू, मेरा दोस्त, किसी ना किसी का कोई ना कोई पुलिस में होगा, मैं बच जाऊंगी. Sure. यू नो, Sure. तो कुछ ना कुछ हो. इतना इजीली सबके कॉन्टैक्ट्स हो चुके हैं, इतना इजी सब कुछ हो चुका है कि हमें डर ही ख़त्म हो चुका है किसी भी चीज़ का. हमें खुद ही नहीं पता. हमें जब आपको स्कूल में, जब हम 1.5 साल के बच्चे को आजकल डाल देते हैं, हम क्यों डालते हैं स्कूल में? ताकि उसको पता चले, यू नो, बेल, उसको बेल का बताते हैं कि अभी बेल हुई है, आपने जाना है. Conditioning, yeah. हम उसको पॉटी ट्रेन कैसे करते हैं? हाँ, by ट्रेनिंग giving होती है responses, ना, yeah, of you course, know, yeah. ट्रेनिंग्स होती हैं. Yeah. इसी तरीके से बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं. हमारी क्या ट्रेनिंग है? हम तो अच्छे खासे बड़े घोड़े हो चुके हैं. हमारी क्या ट्रेनिंग है? हमें नहीं पता कि सिग्नल बंद है, हमें नहीं तोड़ना. वो हमें गवर्नमेंट आके सिखाएगी या ट्रैफिक पुलिस वाला आके सिखाएगा? सिग्नल पे तो सिग्नल उड़ा देना, पुलिस वालों को खड़ा कर दें, वही राइट लेफ्ट, वही स्टॉप, यू नो, स्टार्ट बताते रहें. फिर सिग्नल्स हैं क्यों? जब हम कहते हैं हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. Oh no, we don't. हम लगाते हैं कि जी इतना कचरा था, बिकॉज आई पोस्ट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इतना कचरा था, गाड़ी नहीं आई CBC की उठाने की. Right, okay. कचरा क्यों किया जब वहाँ पर बिन्स पड़ी थी? तो आपने कचरा खाली प्लॉट पे क्यों फेंका? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो किंजर, but doesn't it feel like a losing battle? किसी भी पार्क में चले जाओ, अभी कोरोना के वक्त में जब सब कुछ बंद है तो ज़ाहिर है पार्क्स ही खुले हुए होंगे ना, एंड यू हैव टू गो गेट योर एक्सरसाइज, गेट योर वॉक्स और व्हाटएवर. आप अभी भी किसी भी पार्क में चले जाओ, यू वोंट फाइंड अ पैच ऑफ ग्रास जिसमें गंद ना हो. तो वो हम है ना, वो हम है, वो तो हम खुद हैं. प्रॉब्लम हमसे ही है. इमरान खान, ही सेड दैट, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैं लॉकडाउन करने को तैयार हूँ. आई एम नॉट टेकिंग हिज साइड, बट द पॉइंट जो उसने रेज़ किया था, दैट वाज कि मैं करने को तैयार हूँ, मेरी आवाम भूखी मरेगी. वो जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. मैं सिर्फ उस लाइन स्टेटमेंट पे आ रही हूँ. तो आप लोग मास्क पहनना शुरू कर दें. यू नो, जब मैंने लॉकडाउन किया तो इतने हालात ख़राब हो गए, लोगों ने जो है जॉब्स चली गई, सब कुछ हो गया, ये हो गया. तो आप लोग मास्क पहने. क्या हम पहनते हैं? मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं, क्या हम पहनते हैं? नहीं, हम ही हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं. देन वी आर सेइंग कि जी गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये कर दिया, फिलाना हमारे साथ ये कर गया. सो देन विक्टिम मेंटालिटी, राइट? देयर इज अ विक्टिम मेंटालिटी. वी से कि हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, हम चोरी करेंगे, हम ये करेंगे, हम रोड पे आ जाएंगे. ठीक है, सही है, हम कर रहे हैं, बट हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हम करप्ट नहीं है. मैं कहती हूँ मैं करप्ट हूँ. जब मुझे पता चलेगा मैं 2 नंबरी के तरीके से काम करा सकती हूँ, मैं कराऊंगी.
राइट जब मुझे पता है मैं क्यों ख्वारी करूं, मैं क्यों सिस्टम फॉलो करूं. राइट 6 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, कौन ख्वारियां करेगा, कौन बैठेगा. देखो आगे से आई एग्री विद यू. आगे से एक आर्ग्यूमेंट आती है कि क्योंकि सिस्टम स्मूथली नहीं चलता है तो वो काम नहीं होता है. राइट बट आई थिंक आई वुड एग्री विद यू कि यार देखिए स्टिल गिव इट अ एक चांस. बंदा करेगा सिस्टम में. हाँ मैंने किया, मेरे घर में 8 लोग और हैं, मैंने उनको कहा आपने सिस्टम फॉलो करना है. हाँ ठीक है. हाँ फिर मेरे घर में मेरी भाभियां हैं, हाँ उनको आदत पड़ेगी, वो अपने भाइयों को कहेंगी, हाँ अपनी बहनों को कहेंगी, राइट ओके अपने पेरेंट्स को कहेंगी. ठीक है. मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा, हाँ. आई हैव अ सोशल सर्कल ऑफ लाइक 2000 पीपल. सही 2000 भी छोड़ दें, 200 पे ले आए. ठीक है 200 को मैंने चेंज किया, सिस्टम फॉलो करो. उन 200 को आगे 200 को चेंज किया, सही सही तो चेंज तो हो गया. right yeah देखो whatever you're saying is really positive. I really hope it works like that. कुछ लोग बट हम लोग, मैं खुद भी नहीं फॉलो करती, मुझे खुद को भी नहीं करना. जब मैं देखूंगी अच्छा 10 कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई पुलिस वाला नहीं, मैं तोड़ दूंगी सिग्नल. yeah यू नो yeah हमें जल्दी जाना है, हमें सब्र कहाँ है, पेशेंस है ही नहीं. मैं पेशेंस भी नहीं है और कॉन्सिक्वेंस भी एक हद तक नहीं है ना कि अगर पुलिस वाले ने पकड़ भी लिया तो क्या करेगा. मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूँ. आई सपोज दिस विल हाईलाइट द डिफरेंस. When I was in Canada, I would study at my university, and sometimes I just hang out with my friends at my university. और मैं जब वापस आ रहा होता था कभी कभी रात के 2-3 बज जाते थे. रात के 2-3 बजे बिल्कुल सुनसान जिस टाउन में हम रहते थे वो बिल्कुल बंद हो जाता था, कुछ भी नहीं खुला होता था. तो वहाँ पे पुलिस वाले भी नहीं होते थे, ट्रैफिक कैम्स भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था. एंड स्टिल आई वुड नॉट ब्रेक अ सिंगल रेड लाइट. राइट बिकॉज कॉन्सिक्वेंस इतना ख़तरनाक होता है. जब अगर मैं पकड़ा गया, अगर मैंने ये किया, इतना कुछ होना है मेरे साथ. राइट तो वो दोनों तरफ से है हाँ, ना. yeah, यू नो yeah. गवर्नमेंट की भी है और आपके अंदर भी एक बिल्ट इन हो गया ना, एक हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नहीं ऐसा कुछ नहीं करना. यू नो तो आपको दोनों तरफ से करना है. गवर्नमेंट भी गलत है, हाँ. हमारे यहाँ पर चालान नहीं होते, कुछ नहीं होते, लेकिन हम पे अगर चालान हो भी रहा है तो ना, भरेंगे नहीं. हम कहाँ से ट्रैफिक वालों को इज्जत देते हैं. राइट हम उनको कैसी कैसी बातें नहीं सुनाते. राइट यू नो कितने दफ़ा मैंने देखा है लोगों का करते हुए इस तरह से, या किसी से फ़ोन करवा लेंगे, वो बेचारा अपनी नौकरी के बचाने के चक्कर में छोड़ देगा 400-500 रुपए का चालान. सही तो राइट यू नो इफ हम भी गलत हैं, वो गलत हैं, तो हम भी गलत हैं. ऐसा नहीं कि हमारे साथ नाजायजी हो रही है, नहीं हमारे साथ गलत किया जा रहा है. एक मुझे कोट याद आता है, कोई समझदार शख्स थे, ने कहा था कि a prisoner is someone who refuses to free themselves. Yeah. Right, so you have to, I think that's what you're saying. Behal, Kinja, this has been wonderful. It was beautiful having you here. Thank you. Any final things that you would like to say? अपना Instagram, YouTube, Facebook जो भी बोल plug करना No, हो. I just want to say because I know कि ये औरत मार्च पे बहुत सारी चीज़ें उठेंगी. हाँ. So it's just that मैं अग्री करती हूँ या डिसअग्री करती हूँ, डजंट मैटर. Yeah. बट इट्स माई ओपिनियन. आपका ओपिनियन अलग है. अगर आपको लगता है आप इस तरह आके दुनिया को बदल सकते हो, मोर देन वेलकम. हम तो चाहते हैं दुनिया बदले, पाकिस्तान बदले, औरतें आगे आएँ. मेरी नज़र में कुछ चीज़ें बहुत गलत हैं जो मैं इसलिए उसको फॉलो नहीं करती, उसको एक्सेप्ट नहीं करती. Right, हाँ, और मैं अपनी सराउंडिंग्स में करवाना भी नहीं चाहूँगी. सो येस, एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से. और बाकी जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन थी, आई होप हम जिस तरह के सेशंस दे रहे हैं या जो भी हम चेंज लाना चाहते हैं पाकिस्तान में, हम ले आएँ. यूथ में चेंज ले आएँ. यूथ हमारा फ्यूचर है. इंशाल्लाह. बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बुरा लगता है मुझे देख के, जो यूथ कर रही होती है जिस तरीके से. बट आप लोग ही फ्यूचर हैं. हम आप लोगों पे ही ऑब्वियसली डिपेंडेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन यस आप बच्चे हैं, आगे हमारे बच्चे आने, वो हमारा फ्यूचर है. सो चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिव होके सोचें. इंशाल्लाह. बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन फिर मिलते बड़ी अच्छी तरीके से हैं. सो यू नो जस्ट बी पॉजिटिव. राइट ट्रैक पे चलेंगे. गलत ट्रैक हमेशा आपको शायद वो चीज़ जल्दी दे देगा, लेकिन गलत ही ले जाएगा, बिकॉज वो गलत है. सो यू नो जो राइट ट्रैक होगा वो देर से देगा, मुश्किलों में देगा, लेकिन वो राइट ट्रैक होगा. तो जो एंड हमेशा उसका अच्छा होगा. ब्यूटीफुल. हेल्प अस हेल्प कराची. Yeah, help us. Yeah, do follow Help Us Help Karachi on Facebook. And वो एक और है परवाज़ों की, ख्वाबों की परवाज़. That's yeah. वो भी उसका Instagram है, उसकी अपडेट्स उस पे ही आती हैं. आपका अपना Instagram प्लग करो. It's Kinjer Khoso. Kinjer Khoso. Facebook. Kinjer Khoso. YouTube. Kinjer Khoso. All Kinjer Khoso. Yeah. Kinjer, this has been wonderful. Thank you so much. Thank you for coming by, and I hope
everything goes well. You're doing beautiful work, right? Thank you. Allah Allah khair karega inshallah. Kinjar Qazi Akbar, Assalamu alaikum.